السلام علیکم، میں ہوں فراست سنگھ، سوال نیوز ٹی وی سے۔ آج ہم یہاں موجود ہیں پاکستان وغیرہ ویلفیئر ایسوسیشن کی آج یہاں کے راجہ عبدالرشید صاحب سے یہاں کی ڈیری کمیٹی کے جو افراد ہیں ان سے حلف لیں گے، اور اس تقریب میں کافی سارے لوگ جو ہیں شامل ہونے جا رہے ہیں، اور ابھی تھوڑی دیر میں یہ تقریب اسٹارٹ ہونے جا رہی ہے۔ اور اس طریقے کی کوریج کے لیے بہت بہت شکریہ اس ایونٹ کو آرگنائز کرنے کے لیے آپ کے اس حال میں میری تمام برنی میرا باغ کے اپنے ان علاقے کے لوگوں سے گزارش ہے کہ جب وہ اندر آئیں تو پلیز کھڑے ہو کر ان کا استقبال کریں، کیونکہ ہم برنی میرا والے خصوصاً میرا والے اپنے مہمانوں کو ایک خاص عزت دیتے ہیں، اور جو اپنے چیف گیسٹ راجہ عبدالرشید صاحب کو، ان کے ساتھ آئے ہوئے راجہ زبیر صاحب کو، راجہ اظہر صاحب کو اور ان تمام مہمانوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ کھڑے ہو کر ان کا استقبال کیجیے گا۔ میں راجہ زبیر صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ یہاں پہ آئے۔ راجہ عبدالرشید صاحب کو یہاں پر خوش آمدید کہتا ہوں، ان کے ساتھ آئے ہوئے تمام مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور راجہ اظہر صاحب کو، راجہ ارشد بھائی کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں کہ انہوں نے ہمارے لیے ٹائم نکالا، اور آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ اپنے چیف گیسٹ کا کھڑے ہو کر استقبال کیجیے گا۔ ان کا بھی تعلق برنی میرا سے ہے۔ راجہ عبدالرشید صاحب ہمارے درمیان پہنچ چکے ہیں، جو آج کی تقریب کے مہمان خصوصی ہیں۔ میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے وقت نکالا۔ ارشد بھائی، ان کو بھی ہم خوش آمدید کہتے ہیں کہ انہوں نے ٹائم نکالا۔ آج کی تقریب کے مہمان خصوصی راجہ عبدالرشید صاحب ہمارے درمیان پہنچ چکے ہیں۔ میں ارشد بھائی اور راجہ زبیر صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے قیمتی ٹائم سے ہماری تقریب میں شرکت کے لیے وقت نکالا۔ بہت شکریہ زبیر بھائی، ارشد بھائی، اور خصوصاً مہمان خصوصی صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں، ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور ان کو ویلکم کرتے ہیں۔ میں بابو علی افسر صاحب کو حلف برداری تقریب پاسبان میرا ویلفیئر سوسائٹی برنی میرا کراچی کی تقریب میں آمد پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ آواز خلق کراچی کے صدر سردار نذیر صاحب کو خوش آمدید کہتا ہوں، طارق بھائی کو خوش آمدید کہتا ہوں، شاہد بھائی کو ویلکم کرتے ہیں، سردار افضال کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کی تقریب میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور ان کے ساتھ آئے ہوئے تمام معزز مہمانوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میرے پیچھے سیٹوں میں بیٹھے ہوئے تمام بھائیوں سے گزارش ہے کہ وہ آگے آ جائیں خالی نشستوں پر۔ صاحب کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں، باغ ویلفیئر سوسائٹی کے تمام ممبران کو تقریب علف برداری تقریب میں آمد پر خوش آمدید کہتا ہوں، اور پیچھے بیٹھے ہوئے تمام حضرات سے گزارش ہے کہ آپ آگے آ جائیں تاکہ خالی نشستوں کو پر کیا جائے اور پروگرام کو شروع کیا جائے۔ زاہد خٹک صاحب PS 98 سے جو ہمارے مہمان آئے، میں ان کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔
آپ کا شکریہ، آپ نے ٹائم دیا۔ ان کے ساتھ زاہد کھٹک صاحب کے ساتھ آئے ہوئے مہمانوں کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ گزارش ہے کہ آپ آگے تشریف لے آئیں۔ اورنگزیب عباسی صاحب کو بھی یہاں آمد پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ چیئرمین شوکت صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ کتنے لوگ کون کون آئے؟ سردار شاہد صاحب ہمارے ساتھ کرنگی سے شامل ہوئے، ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں، اور تمام معزز مہمانوں کو جنہوں نے پاسبان میرا ویلفیئر سوسائٹی برنی میرا کی حلف برداری تقریب میں آج یہاں پر شرکت کی، وقت دیا، آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ پیچھے بیٹھے ہوئے تمام حضرات سے گزارش ہے کہ آپ آگے والی نشستوں پہ آ جائیں تاکہ باقاعدہ تقریب کا آغاز کیا جائے۔ ملک گلفراز صاحب، ان کے ساتھ آئے ہوئے شوکت بھائی اور دیگر مہمانوں کو بھی ہم یہاں تقریب پہ آمد پر خوش آمدید۔ افسر صاحب ہوں گے، میں سردار رویز صاحب کو، ان کے ساتھ آئے ہوئے تمام معزز مہمانوں کو یہاں پہ آمد پر خوش آمدید کہتا ہوں، اور اس کے بعد سٹیج کے تمام تر ذمہ داریاں راجہ زبیر صاحب کریں گے، جو کہ میرے سابقہ جنرل سیکرٹری بھی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں تلاوت قرآن مجید کے لیے دعوت دوں گا قاری بلال سچی صاحب کو کہ اس اسٹیج پہ تشریف لائیں۔ قاری بلال سچی صاحب۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا
وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير صدق الله العظيم. نعتیں سرکار کی پڑھتا ہوں میں، نعتیں سرکار کی پڑھتا ہوں میں، بس اسی بات سے گھر میں میرے رحمت ہوگی، ایک تیرا نام وسیلہ ہے میرا، رنج و غم میں بھی اسی نام سے راحت ہوگی. یہ سنا ہے کہ بہت گور اندھیری یہ سنا ہے کہ بہت گور اندھیری ہوگی، پر قبر کا خوف نہ رکھنا ہے دل، قبر کا خوف نہ رکھنا ہے دل، وہاں سرکار دو عالم کی زیارت ہوگی. نعتیں سرکار کی پڑھتا ہوں میں، بس اسی بات سے گھر میں میرے رحمت ہوگی، ایک تیرا نام وسیلہ ہے میرا، رنج و غم میں بھی اسی نام سے راحت ہوگی. آج میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پاسبان مہرا ویلفیئر سوسائٹی بانڈی مہرا، جو کہ پہلے وہاں بانڈی مہرا میں اور ابتباد میں کام کر رہی تھی، اب بھی انہوں نے کراچی میں انہوں نے ایک جنرل باڈی بنائی ہے اور جس کی آج افتتاحی تقریب ہے. سب سے پہلے میں جو ان کے عہدیداران ہیں ان کو بلاؤں گا اسٹیج پہ وہاں ہیں. وائس چیئرمین ہیں محمد نذیر عباسی صاحب، چیف کوآرڈینیٹر عبدالرزاق عباسی صاحب، صدر عبدالجلیل عباسی صاحب، سینئر نائب صدر محمد وقاص عباسی، نائب صدر فیصل عباسی، جنرل سیکرٹری شاہد ستی، سینئر جنرل سیکرٹری راجہ حماد، جوائنٹ سیکرٹری عامر عباسی، فنانس سیکرٹری طارق عباسی، سینئر فنانس سیکرٹری زید عباسی، جوائنٹ فنانس سیکرٹری ریاض ستی، پریس سیکرٹری عبدالشکور ستی، سوشل میڈیا ایڈوائزر محمد فیضان عباسی، فلائی جنرل سیکرٹری سعید عباسی، جنرل سیکرٹری اطلاعات محمد نبیل عباسی، مذہبی امور قاری بلال ستی، ایجوکیشن انچارج نوید عباسی، معاون خصوصی شبیر عباسی، ترجمان فیاض عباسی، لیگل ایڈوائزر ساجد عباسی اور جلیل عباسی اور ظہور ستی سے درخواست ہے کہ اسٹیج پہ تشریف لائیں.
میں درخواست کروں گا بابی علی افسر صاحب سے اور رویز کڑال صاحب سے کہ وہ ان کو ہار پہنا دیں. ملک ساگ صاحب سے درخواست ہے کہ اسٹیج پہ آئیں اور ان کو ہار کریں. سال تھوڑا اچھا درمیان ہو جائے. آپ ادھر ہو جاؤ, سینٹر ہو جائے. اچھا بہت شکریہ. اب میں دعوت دوں گا راجہ رشید خان کو کہ وہ آئیں اور ان کا حلف جاری کریں. حلف کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج پاسبان میرا ویلفیئر سوسائٹی پانڈی میرا یہ حلف نامہ ہو رہا ہے. آپ سارے میں پڑھوں گا اور آپ رپیٹ کریں. میں اللہ تعالیٰ کو حاضر و ناظر جان کر وعدہ کرتا ہوں کہ میں وفاداری کے ساتھ اپنی ذمہ داریاں نبھاؤں گا اور اپنے ذاتی مفادات آگے نہیں بڑھاؤں گا. میں پوری ایمانداری سے اپنی تنظیم کو چلانے والے قوانین قواعد و ضوابط اور بہترین طرز عمل کو سمجھوں گا اور ان کی پاسداری کروں گا. میں اپنی تنظیم اور معاشرے کے لیے نقصان دہ بدعنوان غیر منصفانہ مسابقت سے باز رہوں گا. میں اپنی تنظیم سے متاثر تمام لوگوں کے انسانی حقوق اور وقار کا تحفظ کروں گا اور میں امتیازی سلوک اور استحصال کی مخالفت کروں گا.
इन असूलों के मुताबिक अपने पेशा वराना फ़राइज़ को बरूए कार लाते हुए मैं ये तस्लीम करता हूँ कि मैं अपने रवैये और खलूस से आवाम का एतमाद और एहतराम हासिल करूँगा जिनकी खिदमत के लिए यह तंजीम वजूद में आई है और मैं अपने इक़दामात और कारगुजारी के लिए अपने साथियों और मुआशरे के सामने और अल्लाह ताला के सामने जवाब दे रहूँगा। आमीन। बहुत बहुत मुबारक हो। दोस्तों, अब मैं आपको बताना ही चाह रहा हूँ कि जो तंजीम बनी है वेलफेयर तंजीम, इसके मकासद क्या है। तो इसके लिए मैं दावत दूंगा जनाब फैज़ान अब्बासी साहब को स्टेज पे तशरीफ लाएं और इसके मकासद बयान करें। फैज़ान अब्बासी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं अपने मेहमान खुसूसी और उनके साथ तमाम माज़र मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि यहाँ वो हमारी इस तकरीब अलबरदारी में शरीक हुए, और जितने भी लोग गांव से आए हुए हैं या यहाँ से जितने भी हमारे इस तकरीब में आए हैं उन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं सबसे पहले जनाब सरपरस्त आला बशीर सत्ती साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने ज़ेली तंजीम का इनेकाद कराची में मुमकिन किया, जिस पर हम सब लोग जो रोज़गार के सिलसिले में कराची में मुकीम हैं अपने इलाके बानी मेरा के लिए काम कर सकेंगे। मैं उस पर उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। इसके अलावा एबटाबाद से आए हुए हमारे वहाँ की काबीना के जो मेंबरान हैं उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं कि वो हमारी इस तकरीब में शिरकत के लिए यहाँ पे आए। इसके बाद मैं यहाँ पे जो हमारी ये तंजीम बनी है उसके जो मकासद हैं वो आपके सामने रखूँगा, क्योंकि कोई भी चीज़ बनती है उसका कोई ना कोई मकसद होता है। तो हमारी ये जो तंजीम है ये भी किसी मकसद के लिए बनी है। तो मैं सबसे पहले आपको इसके मकासद बयान करूँगा। इसमें सबसे पहले है यतीमों बेवाओं की खिदमत करना, और दूसरे नंबर पे हमारा इसका मकसद ये है कि बेसहारा अफराद की इमदाद करना। उसके अलावा यतीम बच्चों बच्चियों की मुफ्त तालीम का बंदोबस्त करना। इस पे चौथे नंबर पे है यतीम बच्चों की शादी में मदद करना। उसके अलावा बुज़ुर्गों की इमदाद करना। नंबर 6 पे है बेवा और यतीम बच्चों के इलाज मुआवजा में इमदाद करना। नंबर 7 पे है पोजीशन होल्डर यतीम बच्चों को स्कॉलरशिप की मदद करना। नंबर 8 पे है बांडी मेरा की फलाह बहबूद के इज्तिमाई कामों में हिस्सा लेना। नंबर 9 में है बेसहारा अफराद की तदफीन में मदद करना। और 10 पे है मुल्क अफराद और हंगामी सूरत हाल में अहले इलाका मुतासिरीन की मदद करना। और जो सबसे अहम इस पे नुकात है वो है हमारे यहाँ पे जो कराची में मुकीम लोग हैं, मरना तो सब ने है, तो यहाँ पे किसी की भी अगर मौत वाक़या हो जाती है तो उसके लिए ये हमारा आखिरी जो है वो है कि कराची में फौतगी की सूरत में मैयत तो हम गांव लेके जाते हैं, तो उसके साथ जो अखराजात हैं उसमें उसके लिए है कि गांव में फौतगी की सूरत में मैयत को गांव तक लाने के अखराजात तंजीम अदा करेगी, जो वर्षा किस्तों में वापस करेंगे। कराची में किसी भी मेंबर या मेरा के रिहायशी का कोई भी मसला होगा तो काबीना के तमाम मेंबरान मिलजुल कर तहावन करेंगे। मतलब ये जो तंजीम है वो इस चीज़ के लिए मिलजुल के काम करेंगे। इसके साथ मैं एक बार फिर तमाम लोगों का, जिसमें बांडी मेरा बाग जहान साथी शतरनाथ और जितने भी माज़र मेहमान आए हुए हैं उन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया सबका।
یہ تھے جناب فیضان عباسی صاحب جو آپ کو اس تنظیم کے مقاصد بتا رہے تھے. اب ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب اجمل میر صاحب جو کہ چیئرمین ہیں BBSL کے اور سوال نیوز بھی چلا رہے ہیں. میں ان سے درخواست کروں گا کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. اجمل میر صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو پاسبان میرا کے جو عہدیداروں نے جو آج یہاں حلف اٹھایا ہے، میں ان کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اور معذرت چاہتا ہوں کسی کام کی وجہ سے میں یہاں لیٹ پہنچا ہوں، تو میری معذرت بھی قبول کریں. یہ نیک شروعات ہیں، اللہ پاک ان کو کامیاب کرے، کیونکہ مشکلات شروع میں آتی ہیں. جب بھی آپ کوئی ویلفیئر کا کام کرنے جاتے ہیں، سیدھا کام کرنے جاتے ہیں، تو ہمارے معاشرے میں بیسیکلی شروع میں آ جاتی ہیں مشکلات، لیکن ثابت قدم جو لوگ رہتے ہیں اللہ پاک ان کو کامیابی دیتا ہے. ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں، پاسبان میرا ویلفیئر والوں کے ساتھ. تو جو بھی ہم سے یہ تعاون کریں گے اور چاہیں گے، جس قسم کا بھی تعاون چاہیں گے، ہم ان کے ساتھ تعاون کریں گے. اور ہماری یہ خواہش ہے کہ یہ اپنا کام بڑھ چڑھ کر فلاح کا کام کریں، اور جو ان سے ہماری جو ایکسپیرینس ہے، جو ہمارا ان سے تجربہ ہے، وہ ہم سے شیئر کریں گے، اور ان کو ڈونر بھی ساتھ دیں گے، ان کے ساتھ مدد بھی کریں گے. اور میری کامیاب پوری دعا ان کے پاسبان میرا کی ویلفیئر کے اداروں کے ساتھ ہے. میں ایک بار پھر شکریہ ادا کرتا ہوں آپ لوگوں کا. یہ تھے جناب اجمل میر صاحب. اب میں دعوت دوں گا جناب سردار نذیر صاحب کو، جو کہ آواز خلق کے صدر بھی ہیں، کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. سردار نذیر صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے پاسبان میرا ویلفیئر کہ جو آج جن عہدیداروں نے ہاتھ اٹھایا، میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور خصوصاً بشیر ستی صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک بہترین گلدستہ سجایا. میری ان سے یہی ریکویسٹ ہے کہ اس گلدستے کو سنبھال کے رکھنا، اس کو بکھرنے نہیں دینا کسی بھی طرح کوشش کر کے. اسی طرح انہوں نے ایبٹ آباد کے لیے مقامی، وہاں ایبٹ آباد کے لیے بھی اپنی تنظیم بنائی، اس کی ذیلی تنظیم ہے. باقی میں اس ٹائم جتنے بھی تنظیم کے عہدیداران آئے ہوئے ہیں، باغ کے، شاہین ویلفیئر کے، جتنی بھی ایوان برادری کے جتنے بھی تنظیم کے عہدیداران آئے ہوئے ہیں، ان سب کو ویلکم کرتا ہوں. پاسبان میرا بانڈی میرا بعد میں بنی ہے، اس سے پہلے پاسبان میرا کے نام سے ان کی ایک ٹیم تھی جو بچے چلا رہے تھے. انہوں نے بہت اچھا کام کیا تھا. سٹارٹ انہوں نے لیا تھا، انہوں نے میرا کٹھے کے مقام پہ ایک گراؤنڈ بنایا، جس کو کچھ کام ہو گیا، تھوڑا سا کام بقایا ہے. وہ بچے، میری ان سے ملاقات ہوئی تھی، انہوں نے مجھے بولا تھا کہ آپ ہمارے ساتھ گراؤنڈ کے لیے تعاون کریں. میں آج بشیر ستی صاحب کو، میں ان بچوں کا میرے اوپر قرض ہے مبلغ 10,000 روپیہ، وہ میں ان کو دینا چاہتا ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ میں آواز خلق کا صدر ہوں، شاہین ویلفیئر باغ کا ڈائریکٹر بھی ہوں، ACL کا صدر بھی ہوں. ابھی ACL چل رہا ہے. میں اپنے جتنے بھی اپنے گاؤں کے، باغ کے، میرا کے جتنے لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، میں آپ سب کو دعوت دیتا ہوں کہ ACL کا فائنل آئے گا. ہم انشاءاللہ سوشل میڈیا کے تھرو آپ کو دعوت دیں گے، اور آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ اس میں بھرپور شرکت کریں. ACL یہ ہم ایک کرکٹ ہی نہیں کھلا رہے، یہ اس کے پیچھے ایک کاز ہے. ہم جتنا بھی اس میں جو بھی پیسے اس کے بچتے ہیں، وہ یتیم بچوں، ہماری جو ویلفیئر ہے آواز خلق، اس میں چلے جاتے ہیں، ان یتیم بچوں کے کھاتے میں چلے جاتے ہیں، ان کو مل جاتے ہیں. میں آپ سب سے یہی ریکویسٹ کروں گا کہ ACL چل رہا ہے، پرواں دوا ہے، انشاءاللہ 31 تاریخ اس کو فائنل ہوگا. آپ جتنا بھی اس کے ساتھ اسپانسرشپ کر سکیں کریں. شکریہ. بہت شکریہ. یہ تھے سردار نذیر صاحب. اب میں سوال نیوز اور واسطہ نیوز کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جو آج یہاں پر موجود ہیں. اچھا، سوال نیوز کے جناب اجمل میر صاحب نے 5,000 روپے کا اعلان کیا ہے. بشیر صاحب. اس کی اب میں صدر پاسبان میرا ایبٹ آباد کے صدر جناب اشفاق عباسی صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ اس اسٹیج پہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. اشفاق عباسی صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم.
मेरे नहायत ही काबिल कदर हमारे खसूसी राजा अब्दुल-रशीद साहब, बाबू साहब, और माजरत के साथ सबका नाम मुझे याद नहीं आता है, माजरत के साथ जी आप सब लोगों को मैं खुशामदीद करता हूँ। और आपने हमें टाइम दिया, अपना कीमती वक्त निकाल के हमें टाइम दिया, आपका शुक्रिया जी। और मैं अपनी नौ मुंतखब काबीना पासबान मेरा वेलफेयर सोसाइटी कराची को मुबारकबाद देता हूँ। और बशीर सती साहब की मेहनत जो है वो रंग लाई है, और बशीर सती साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मेहनत की और एक अच्छी टीम बनाई। बड़ी मेहरबानी जी। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया इशफाक अब्बासी साहब। अब मैं दावत दूंगा सदर जलसा जनाब बाबू अली अफसर साहब को कि वो स्टेज पे तशरीफ लाएं और हमारी रहनुमाई करें। इब्तिदाए खुदाए बुजुर्ग इब्तिदाए खुदाए बुजुर्ग बरतर के नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है, बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। जनाब राजा रशीद साहब, जनाब औरंगज़ेब अब्बासी साहब दोयम, शाहीन वेलफेयर फाउंडेशन बाग के तमाम ओहदेदारान, बाकी जितनी तंजीमों के ओहदेदार बैठे हुए हैं, जनाब अजमल मीर साहब, अरशद साहब, शायद कि मैं सारे नाम ना ले सकूं, पिंडाल में बैठे हुए तमाम भाइयों अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये शहादत हासिल है कि जब पासबान मेरा मार्ज़ वजूद में आई और प्रेस क्लब एबटाबाद में रस्म अल्फ वफादारी अदा की गई तो मैं उसमें भी मौजूद था। वहाँ मैंने एक बात कर दी थी, शायद कई दोस्तों ने उसे महसूस भी किया था कि काश इसका नाम पासबान बांडी मेरा होता, बिकॉज बांडी अगर इलादा हो जाए तो बांडी उस जगह को कहते हैं जहाँ सिर्फ माल मवेशी बांधे जाते हैं। पहले मैं अपने गांव की डेफिनेशन बयान करता हूँ, और मेरा उस जगह को कहते हैं जो नॉन प्रोडक्टिव, कोई पैदावार उस पर नहीं होती किसी किस्म की, उसको मेरा कहते हैं। लेकिन प्रोनाउंसिएशन के लिहाज से जब हम बांडी मेरा कहेंगे तो ये हमारी पहचान बन जाएगी, ये हमारा गांव है। तो उस पर कुछ दोस्त नाराज हुए थे और उन्होंने मुझे एक सज़ा भी दी थी उस नाराज़गी की। लेकिन ये मैं फिर गुजारिश करूँगा कि ये तनकीद जो बराए इस्लाह हो उसे खंदा पेशानी से बर्दाश्त करना चाहिए, क्योंकि तंजीम साजी का मतलब ही यह है कि हम जैसे लोग अगर ख़राब हैं, माशरे में नासूर हैं, तो उनकी इस्लाह इन तंजीमों ने करनी है, ना कि हमने अपनी इस्लाह खुद करनी है। तो उम्मीद ये मैं आज बशीर सत्ती साहब को और रमीज़ अब्बासी साहब को, आफ्ताब साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ, और तमाम ओहदेदारान पासबान मेरा कराची को कि उन्होंने कराची में अपनी झैली शाख का क़याम अमल में लाया, इस पर मैं तमाम ओहदेदारान को दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। अब मैं रमीज़ अब्बासी साहब से ये तो नहीं कहूँगा कि उन्होंने मुझे क्या सज़ा दी, लेकिन रमीज़ साहब आज मुझे बतानी पड़ेगी कि वो सज़ा किया है। अगले दिन फेसबुक पर प्रेस में 27 आदमियों के फोटो और तकरीरें आई, लेकिन एक बाबू अफसर को इग्नोर कर दिया गया वो ये अजमल साहब कह रहे हैं कि फंड का ऐलान करो। मैं हर वक्त हम वक्त इन तंजीमी अहदेदारों के साथ होता हूँ। इनको जहाँ भी मैंने पहले भी ये ऑफर की थी कि दिन हो या रात, बारिश हो या जालाबारी, जब भी मेरी ज़रूरत पड़े मुझे याद कर लेना, मैं इंशाल्लाह तुम्हारे शाना बिशाना हर काम करूँगा।
और अल्हम्दुलिल्लाह इन लोगों की माउनत से हम अच्छे अच्छे काम भी कर रहे हैं, जो कि मुख्तलिफ महल्लाजात और गांव की सतह पर मसलन रोड बनाना, स्कूल को डेवलपमेंट या इंक्रीज उसको बढ़ाना, उसकी क्लासेस बढ़ाना, ऐसे काम ये आज नहीं तंजीमों से इलादा भी हमने हमेशा जारी रखे और जारी इनके साथ मिलकर इनको जारी रखेंगे। दूसरी बात जो सबसे अहम है, मैंने तमाम तंजीमों के अहदेदारों से गुजारिश की थी, जिस तरह आवाज़ खल्क है, बांडी मेहरा वेलफेयर एसोसिएशन है और दीगर तंजीमें, कि आप सब शाहीन वेलफेयर फाउंडेशन बाग और एक दो और तंजीमें, आप सब इनके अहदेदार मिलकर एक सुप्रीम तंजीम बनाएं कि जो कि लोगों का, चंद लोग ऐसे भी हैं हमारे माशरे में जिनके एहतसाब की भी ज़रूरत है, और ये अगर आप एक जामिया तंजीम बनाएंगे और आप एहतसाब करेंगे तो शायद जो करप्शन हमारे इलाके में बहुत ठेकों में होती है, हर सतह पर होती है, जो हमें नज़र नहीं आती, हम इसलिए इग्नोर कर देते हैं कि ठेकेदार हमारे रिश्तेदार है, ठेकेदार हमारा भाई है, उनका भी एहतसाब करें आप। बेशक आप गरीबों, बेवाओं और दूसरे मोहताज लोगों की मदद करें। हमारी हर वक्त तावन आपके साथ रहेगा, आप जिस वक्त आए, चाहे वो पासवान मेरा हो, शाहीन वेलफेयर फाउंडेशन बाग हो, आवाज़ खल्क हो, मैं दाद दूंगा आवाज़ खल्क को। एक ऐसी तंजीम है कि हमारे मोहल्ले में आप सब ने सुना होगा, एक मकान सर्किट शॉर्ट की वजह से जल गया था। आवाज़ खल्क ने मौका पर जाकर वहाँ MNA गए, MPA गए, लेकिन किसी ने कैश खयानत नहीं की मुतासरा खानदान की। आवाज़ खल्क ने 4 लाख रुपए की खयानत करके उस मकान को असर नो बना के उसमें जो सामान चला था वो खरीद के उस घर पर पहुँचाया। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ आवाज़ खल्क को, और यही उम्मीद करता हूँ पासवान मेहरा से और दीगर तंजीमों से कि वो ऐसे काम जारी और सारी रखेंगे। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे बाबू अली अफसर साहब। अब मैं दावत दूंगा मलिक इसहाक साहब को स्टेज पे तशरीफ लाएं और अपने ख्यालात का इजहार करें। मलिक इसहाक। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तुफर्रकू। मोमिनो, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखो और तफरके में मत पड़ो। आज की ये पुररौनक तकरीब जिसका इनेकाद पासबान मेहरा बांडी मेहरा जो वेलफेयर है उसने किया, इस इनेकाद पर मैं सरपरस्त आला पासबान मेहरा बशीर सत्ती साहब और उनके जो दीगर मैनेजमेंट के लोग हैं, रमीज़ अब्बासी, राजा आफ्ताब और दीगर, और बिलखुसूस चेयरमैन आज इनके यहाँ कराची में मौजूद नहीं है, सईद अब्बासी साहब, उनको मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ इस खूबसूरत इनेकाद तकरीब पर कि उन्होंने ये हलफबरदारी की तकरीब का इनेकाद किया। इस मसरूफियत के दौर में जहाँ लोग बेहद मसरूफ़ हैं और आप सब यहाँ वक्त निकाल के यहाँ इस रौनक बख्शी आपने इस तकरीब को, और आज की इस तकरीब के मेहमान ख़ास, मेहमान खुसूसी जनाब राजा रशीद साहब यहाँ स्टेज पर मौजूद हैं। उनके साथ हमारे बुज़ुर्ग सियासी और समाजी शख्सियत बाबू अली अफसर साहब, जिन्होंने अभी थोड़ी देर पहले बांडी मेहरा की डेफिनेशन या मतलब आपके साथ शेयर किया। बिल्कुल यही है इसका एक दूसरा मतलब। अगर ये लिया जाए कि बांडी वो जगह जहाँ सूरज की शुआएं देर से पड़ती हों, दलवान की जगह हो उसको बांडी, और मेहरा वो जगह जहाँ सूरज सुबह यानी पहले टाइम जहाँ उसकी किरणें पड़े, मेहरा यानी ऊंची जगह। तो ये दोनों खूबसूरत जगह हैं बांडी और मेहरा। बहुत शुक्रिया बाबू अफसर साहब का, उन्होंने भी जो मतलब बताया बिल्कुल मैं उससे एग्री करता हूँ, उसको डिसएग्री नहीं कर रहा। तो और बांडी में पासबान मेहरा के लिए सिर्फ इतना ही कहूँगा कि हमने 2003 से मुख्तलिफ वेलफेयर बनाते आ रहे हैं, उसको चलाते आ रहे हैं और काम जारी रखे हुए हैं। ये काफ़ी मुश्किल काम है। अभी रिसेंटली कुछ 2 माह पहले मैं एबटाबाद गया, वहाँ पासबान मेहरा की तरफ से हमें एक
آئی ٹی پارٹی میں انوائٹ کیا گیا، ان کا بہت شکریہ۔ تو وہاں ذکر ہوا گرین ویلی ویلفیئر فاؤنڈیشن کا، تو وہاں ان کی طرف سے گلہ بھی تھا کہ گرین فاؤنڈیشن ویلفیئر فاؤنڈیشن نے گاؤں کے مختلف ملاجات میں جنریٹرز پرووائڈ کیے تھے، تو میرا وہ ایک محلہ ایسا تھا جہاں یہ نہیں کر سکے، تو یہ ریکویسٹ میں نے اپنی کیبنٹ اور اسپیشلی چیئرمین صاحب سے کی۔ تو اس کے بعد جب چیئرمین صاحب خود یہ اسپیچ کرنے آئیں گے تو وہ اس کے بارے میں انشاءاللہ اناؤنسمنٹ بھی کریں گے اور خیالات کا اظہار کریں گے، چونکہ گرین فاؤنڈیشن کے چیئرمین اشرف صاحب ہیں تو وہ خود اس کا اعلان بھی کریں گے اور اس پر بات چیت کریں گے۔ اور گرین فاؤنڈیشن ہمہ وقت پاسبان میرا کے ساتھ انشاءاللہ شانہ بشانہ کام کرے گی۔ بی وی ایس ایل کے بھی ہم بورڈ ممبر کے طور پہ کام کر رہے ہیں، اے سی ایل میں بھی ہم کیبنٹ میں ہیں، تو انشاءاللہ جس طرح کی بھی معاونت اور مشاورت درکار ہوگی پاسبان میرا، بشیر ستی، رمیز عباسی، راجہ آفتاب اور دیگر کے ساتھ ہم شانہ بشانہ انشاءاللہ یہاں کراچی میں، گاؤں میں، جہاں بھی ہو ہم ساتھ رہیں گے، ساتھ کام کریں گے۔ بہت شکریہ۔ یہ تھے ملک اسحاق صاحب جو کہ بانڈی میرا کے لیے دن رات خدمت میں کوشاں رہتے ہیں۔ اب میں دعوت دوں گا جناب رضا کیوان صاحب کو کہ اسٹیج پہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ رضا کیوان۔ الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علیک سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے قابل احترام جناب علی افسر صاحب، قابل احترام جناب راجہ رشید خان صاحب، میرے بہت قابل احترام جناب اورنگزیب عباسی صاحب، قابل احترام جناب ارشد صاحب، جناب سردار نذیر صاحب اور بہت سارے دوستوں کا مجھے نام جو کہ یاد نہیں ہے، تو میری طرف سے سب دوستوں کو السلام علیکم۔ ساتھیوں، آج بہت خوشی ہوئی ہے کہ یہ پاسبان میرا جو تقریب انہوں نے یہاں سجائی ہے، اور میں جناب یہ ستی صاحب انہوں نے میرے کلاس فیلو بھی ہیں، تو میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، انہوں نے یہاں پہ ہمیں مدعو کیا، تو میں یہاں پہ آپ سب بھائیوں کا بہت بہت شکریہ ہے کہ یہاں پہ تشریف لائے ہو اور ایک گلدستہ یہاں پہ بنایا ہے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمارے کو اسی طریقے سے ہمت دے، طاقت دے، توفیق دے کہ مل بیٹھ کے اپنا کام کریں، اور جس طریقے سے پاسبان میرا نے کوشش کی ہے کہ یہاں پہ ہم یتیم بچوں کا، مسکینوں کا، اس کے لیے یہ بنائی گئی تنظیم، تو انشاءاللہ تعالیٰ جو بھی تعاون ہم سے ہو سکا، جانی ہو، مالی ہو، ٹائم کا ہو، انشاءاللہ تعالیٰ پاسبان کے ساتھ ہمارا تعاون جاری و ساری رہے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ میں حاجی اقبال صاحب اور ملک گلفراز صاحب ان کے ساتھ آئے ہوئے معزز مہمانوں کو تقریب میں آمد پر خوش آمدید کہتا ہوں، ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اسٹیج پہ آ جائیں، سامنے آ جائیں۔ یہ تھے رضا کیوان صاحب۔ اب میں دعوت دوں گا نور تنوری جو جنرل سیکرٹری پی ایف 98 کے ہیں کہ اسٹیج پہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ نور تنوری صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں تمام دوستوں کا شکر گزار ہوں جنہوں نے سلیم بھائی، سب سے پہلے سردار سلیم صاحب، انہوں نے مجھے انوائٹ کیا اس محفل میں۔ آپ لوگوں کو دیکھ کر یہاں بڑی خوشی ہوتی ہے۔ میرا تعلق بھی ہزارے سے ہے، سکندرآباد شہر ہے ہمارا اور متیال گاؤں، تو ہمیں خوشی ہوئی آپ لوگوں کے درمیان، اور آپ لوگوں نے گلدستہ سجایا، آپ لوگوں نے ماشاءاللہ ایک ویلفیئر بنائی، آپ کی ماشاءاللہ سے پرانی ویلفیئر ہے، 2003 سے بھی کسی صاحب نے کہا، میں نہیں جانتا آپ لوگوں کو، لیکن بڑی خوشی ہوتی ہے کہ جب ہزارے کے لوگ ویلفیئر کے لیے کام کرتے ہیں۔ میرا صرف اتنا میسیج ہے، ہمیشہ فلاح و بہبود کے لیے اچھا کام کرنا چاہیے۔ میرا میسیج یہ بھی ہے، ہمیں منافقت، بغض اور حسد سے پاک رہ کر تمام لوگوں کے درمیان اتفاق پیدا کرنا چاہیے، اور تمام لوگ اتفاق رائے سے رہیں، اور آپ لوگوں نے یہاں انوائٹ کیا، بہت شکریہ۔
थैंक यू। मैं आज इकबाल साहब, उनके बेटे फ़हीम इकबाल साहब और गुलफराज तनोली साहब को तहे दिल से अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया। ये थे जनाब नूर तनोली साहब। अब मैं दावत दूंगा बर्नी मेरे की हर दिल अजीज़ शख्सियत और ग्रीन वैली फाउंडेशन के चेयरमैन जनाब अरशद साहब से के स्टेज पर तशरीफ लाएं और अपने ख्यालात का इजहार करें। जनाब अरशद साहब। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे ख्याल में कद इतना बड़ा नहीं है, इसलिए यहाँ से सब भाई को मैं भी देख सकूँगा और आप भी मुझे देख सकेंगे। तो कैन आई स्टैंड हियर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फसयक्फ़ीकुमुल्लाहु वस्समीउल अलीम। मैं एक वज़न मेरे हाथ में थमा दिया गया है, पहले तो मैं उससे छुटकारा, क्योंकि नोटों का जो वज़न है वो उसके हाथ में पकड़े हुए मैं कोई काम नहीं कर सकूँगा, कोई बात नहीं कर सकूँगा। आफ्ताब भाई और बशीर सत्ती भाई से गुजारिश करूँगा, हमारे बहुत ही प्यारे मेहमान ख़ुसूसी जो ये समझते हैं कि वो तकरीरें वगैरह ज़्यादा उन पर ईमान नहीं रखते, लेकिन वो ज़्यादा अहमियत तंजीमों को किस चीज़ की है वो देना चाह रहे हैं, तो उनका पहली किस्त आपके लिए 25,000 रुपये है। मैं आपके बदस्त दिलवाना चाहता हूँ सर, प्लीज़ पहले मेरा ये जिम्मेदारी हटाइए, उसके बाद मैं अपने भाइयों से बातें करूँगा। ये 25,000 रुपये जी इस तंजीम के लिए इनकी तरफ से ये सपोर्ट है। इसके साथ ही चूँकि उनकी तरफ से ये हिदायत है कि फ्यूचर में, क्योंकि राजा रशीद भाई जो है वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, जिन लोगों को नहीं पता मैं बता देना चाहता हूँ, हुसैन हारून साहब की तमाम जो मैनेजमेंट है, उनके जो बिजनेसेस हैं, और हुसैन हारून साहब के बारे में आप जानते हैं क्या एंटिटी हैं वो, माशाल्लाह वो उस ख़ानदान से हैं जो कायद-ए-आज़म को जिन्होंने पाकिस्तान के लिए ओपन चेक्स दिए थे, तो ये उनको असिस्ट करते हैं और हमारा फ़ख्र है कि हमारे भाई हैं और उनके इतने बड़े एंटिटी के साथ ये काम करते हैं, और वो भी क्योंकि बहुत ज़्यादा सोशल हैं। और राजा भाई ने आज तक, वो 2003 की ये तंजीम नहीं है, मैं सर से बता दूं कि 2003 की हमारी और तंजीम है, ये अब इस्टेबल हुई है, लास्ट ईयर हुई है, तो ये PMSW जो है PMWS, तो ये एक नई एडिशन है हमारी बहुत सारी तंजीमों में। चूँकि एक्सपीरियंस ये हुआ कि तंजीमों, हम लोग चूँकि इतने रिसोर्सेज वाले नहीं होते कि हम खुद कुछ कर सकें, तो अब देखिए एक सिस्टम है कि अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा किया है, सिंगल है, एक लेवल तक वो सिंगल अपनी ज़िंदगी को गुजार लेता है। एक टाइम आता है, अल्लाह ने एक सिस्टम बनाया कि अब वो 2 आदमियों की ज़रूरत है, तो इंसान शादी करने में मजबूर होता है, तो वो एक ही ज़िंदगी 2 लोग फिर पुश करते हैं और फिर एक फैमिली बनती है। तो अब यहाँ पे भी ये हुआ कि हम लोग अपनी अपनी अकेले में यहाँ पे जो मसाइल थे उनको फेस नहीं कर पा रहे थे, उनको नहीं संभाल पा रहे थे। फिर ख्याल आया कि यहाँ पे जब कराची में आ गए तो हमें दूसरे लोगों से, दूसरी कौमों से, मेहमान और मेयो और फलाना, उनको हमने देखा यार वो यूँ जॉइंट होते हैं, तो जनाजा भी संभाल लेते हैं, बीमारों को भी संभाल लेते हैं, कोई कोर्ट कचहरी वगैरह वगैरह बहुत सारे मामला में वो जब इकट्ठे हो जाते हैं, वो यूनिटी इज स्ट्रेंथ की बात। तो चलें हम भी जब मैं बिल्कुल क्लियर कट ये प्राउड से कहूँगा कि इन शादी हालों में हम या हमारे बुजुर्ग पार्टी लगाने आते थे, आज हम पार्टी करा रहे हैं, तो इट्स अ रिवोल्यूशन। मैं खुद ऐसी पार्टियाँ लगा चुका हूँ। पार्टी से मुराद जो लोग शादी करते थे, आज जो नौजवान हमें सर्व करेंगे, किसी ज़माने में हम थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हम यहाँ पार्टी करा रहे हैं। तो अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी में मौक़े देता है, और उसको इस छोटी सी ज़िंदगी में आप देखते होंगे अल्लामा इकबाल, कायद-ए-आज़म, शेक्सपियर, लिखा होता है 1900 फलाना डैश इतना। हमारा भी ऐसा ही है, डैश लगा हुआ है, वो अगली डेट हमें नहीं पता, 1970 मैंने सच ही बता दिया, और डैश वाला किसी को नहीं पता। बात ये है कि एक तो जो काबीना आज जिन पे ये जिम्मेदारी है, फूलों के हार वार पहनाए, राजा आफ्ताब ये भाईजान फूलों के हार नहीं है, हमारे दोस्तों से जो 2003 से या उससे पहले से इस ज़िम्मेदारी से नबर आजमाए हैं, उनसे पूछिए। उनके बच्चों को कई दफ़ा बहुत प्रॉब्लम्स हुई और उनकी फैमिलीज़ उनसे छूट गई, गांव में बहुत सारे उनको मसाइल फेस करना पड़े, वो उनकी अपनी डेवलपमेंट्स रुक गई। लेकिन चूँकि वो जज्बा था कि यार वेलफेयर है तो इसमें हम आग से भी गुजरेंगे, क्योंकि इसका एक नशा है, आपको वो नशा मिलेगा, लेकिन हर काम के कर गुजरने के बाद उसका प्रूफ ही है। आप किसी से चंदा मांगोगे आपको मौत पड़ेगी, क्योंकि भीख मांगना आसान काम नहीं है ख़ानदानी आदमी के लिए। आप भीख मांगोगे अपने उन बच्चों के लिए, वो यतीम बच्चों के लिए या बेवाओं के लिए, हमारी बहनों के लिए जिनको जो रिसोर्सेज में कम हैं।
اب وہ کسی سے آپ میرے پاس بھی آتے ہوئے آپ میرے دوستوں تو چندہ مانگتے ہوئے آپ کو بہت مشکل ہوگی، لیکن آپ انجوائے کب کریں گے؟ جب آپ ان کے ہینڈ اوور کریں گے وہ پیسہ جو لوگوں سے بھیک مانگ کے آپ ان کے ہینڈ اوور کریں گے، بڑی خاموشی سے لفافے میں بند، اور ان کو بھی بتائیں گے نہیں کہ میں آپ کو یہ زکوٰۃ دے رہا ہوں، بلکہ آپ بولیں گے یہ آپ کا حق تھا جو لوگوں کی کمائی میں سے آپ کا رائٹ تھا جو اللہ نے آپ کے نام لکھا ہوا تھا، ہم نے کلیکٹ کیا ہے آپ تک پہنچایا ہے۔ جب ان کے گھر میں وہ خوشحالی آئے گی، جب ان کے بچے، ہمیں بہت ایکسپیرینس ہے ان چیزیں، ہم نے بہت ساری سٹوریز ہیں اس سے کہ جب کئی دفعہ ایسا ہو رہا تھا کہ بچہ ضد کر رہا تھا، یتیم تھا، اور وہ ہو رہا تھا کل عید ہے اور میں نئے کپڑے پہنوں گا، ماں اس کو ٹہلا رہی تھی، لیکن انہی تنظیموں کا کوئی لفافہ اس کو اسی ٹائم پہنچا اور اس نے بچے کو کہا جا لیا۔ تو دیکھ لیں کہ وہ خوشی، اصل میں کسی کو کوئی انسان کچھ نہیں دے سکتا، یہ گارنٹی ہے۔ ہمیں بھی جو دیا ہوا ہے اللہ نے دیا ہوا ہے، ہم نے بھی کچھ خود نہیں بنایا، کیونکہ ماں کے پیٹ سے کوئی بھی چیزیں جو ہے نا لے کے ساتھ نہیں آتا، ساری دولت وغیرہ، آپ کی محنت اس میں شامل ہوتی ہے، لیکن تقدیر ایک بہت بڑا عنصر ہے جس پہ ایمان لانا بحیثیت مسلمان ہم پہ فرض بھی ہے۔ تو تقدیر میں آپ کے لکھا ہوتا ہے کہ آپ کے بچوں نے یتیم ہونا ہے یا نہیں ہونا، اب وہ پتہ نہیں میرے بھی کل ہو جائے، تو اس لیے یہ کوئی لعنت کی بات یا بری بات نہیں ہے کوئی یتیم یا مسکین، تو بہتر یہ ہے کہ ہم ان الفاظ کو، وہ ہمارے بچے ہیں، ان کا ہماری کمائی میں حق ہے، کیونکہ کل میرے بچے بھی ہو سکتے ہیں۔ ہمیں یہ تنظیمیں کیا دیتی ہیں؟ ایک سسٹم دیتی ہیں، ایک پلیٹ فارم دیتی ہیں کہ سوسائٹی میں آپ کو یہ سارا صورتحال اتنی باعزت طریقے کو، اللہ تعالیٰ کہتا ہے آپ کسی کو دو تو معروف طریقے دے۔ اب مجھے وہ آیت کا، اس کا ورڈ معروف ہے عربی میں بھی، معروف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ جب کسی کو کوئی چیز گیو کر رہے ہیں، اس کو ہینڈ اوور کر رہے ہیں، تو اس کو دے نہ رہے ہوں بلکہ اس کو ہینڈ اوور کر رہے ہیں، یہ آپ کی چیز ہے، لائک اے گفٹ، لائک اے تحفہ۔ تو یہ تنظیمیں، میں افسر بھائی کی اس چیز کو تھوڑا سا اپنے الفاظ میں، کیونکہ میں ہر چیز کو تھوڑا سا ہر پکچر کو اس کے صرف پازیٹیو اینگل کو دیکھتا ہوں، میں اس کو جسٹیفائی کروں گا پاسبان مہرا کی جو تنظیم بنی ہے، کیونکہ میں اگر اس کو اپوز کرتا ہوں کہ محلے کی تنظیم کیوں بنی، تو پھر میں اپنی TWS جو ہماری تریڈا کی تنظیم ہے، پھر ظاہری مجھے اس کو بھی اپوز کرنا پڑے گا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پہلے گاؤں لیول کی تنظیموں نے بہت کام کیا، اس سے اب ہمیں ایک اس طرح کے کچھ سروسز آپ ہول پانڈی میں کوئی ایک ہی تنظیم نہیں دے سکتی۔ آپ کئی کرسیوں کا سیٹ اپ کرنا ہے، مشکل ٹائم کے لیے آپ ٹینٹ وہاں میں ضرورت پڑتے ہیں، جنریٹر ضرورت پڑتے ہیں، بارشیں ہو گئی ہیں، تو وہ ساری چیزیں اگر محلہ وائز ہر آدمی یہ کر لے گا اور پھر جوائنٹلی آپس میں ایک دوسرے کو گفٹ کریں، بعد میں یہ تنظیم ہے۔ میرا والے کبھی تریڈا میں کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے، ڈنے میں، تھاتھی میں، تو میرا کی اس تنظیم کی طرف سے اس کا یہ گفٹ آیا، تریڈا والے، چترناتھ والے کوئی میرا میں بڑا وبا آ گئی، کوئی بڑا مسئلہ آیا، تو ان کی بحیثیت تنظیم ایک گفٹ وہاں پہ کر دیں۔ تو آپ لوگ کا کیونکہ کام ایک ہی ہے، تو اس حوالے سے میرے خیال میں آپ بھلے پیسز میں، دوسری ایک اور چیز ہے، ہم آج کل ACL میں کرکٹ کے مقابلے ہو رہے ہیں، ہم ہر نیگیٹو مقابلے، ہر چیز میں مقابلے، پیسے کے مقابلے، پلاٹ لینے کے مقابلے، وہ بچوں کو آگے لے جانے کے مقابلے، وہ سارے مقابلے کرتے ہیں۔ صحابہ کرام جو مقابلے کرتے تھے نیکی میں مقابلے کرتے تھے، آج وہ مقابلہ کہیں نہیں ہو رہا۔ میرے خیال میں یہ تنظیمیں اس مقابلے میں نیچرلی آ جائیں گی جب TWS اور آپ کی PMWS اور دیگر محلے والے، جب ہم دیکھیں گے یار تریڈا والوں نے آپس میں یہ لے لیا، آپ کو بھی وہ آئے گا یار ہم ان سے اچھا اپنے سروسز کریں، دوسری تنظیم اس سے اچھا کرے گی۔ تو پازیٹیو چیز میں مقابلہ جائز ہی نہیں، ثواب بھی ہے، کرنا چاہیے۔ میں اگر 10 نفر رات کو پڑھتا ہوں، اور صحابہ کرام کا یہ تھا، دوسرے صحابی چاہتے تھے آج میں وہ 20 پڑھ کے آئے۔ ہم دراصل میں بدقسمتی ہے کہ ہمیں جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہے، بس جو یہ سمجھیں کہ یہود و نصارہ، اصل میں حاکم اسلام چھوڑ دیا ہم لوگوں نے، ہمارے کئی صدیوں سے یہ چیز ہوئی ہے۔ اس کے بعد ہم کوئی پتہ ہی نہیں ہے، ڈائریکشن ہی نہیں ہے کہ آپ سوری میں اگر زیادہ ٹائم لے رہا ہوں تو انتظامیہ کہ مجھے الاؤ ہے۔ وہ جس طرح خلافت عباسیہ یا اس طرح کی جو تھی آج تک ترکی میں، اس کو ریپیٹ کرنے کا سوچ رہے ہیں، ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہے۔ میں یقین کریں تقریر نہیں کر رہا، آپ سب میرے بزرگ ہیں، میرے بھائی ہیں، اور مجھے بہت آپ سے باتیں کرنے کو دل کر رہا ہے، وہ میں باتیں کر رہا ہوں، کیونکہ یہ موقع ہمیں پاسبان نے دیے، کیا پتہ یہ دوبارہ موقع ملا نہیں ملے۔ انسان کو دل کی بات کرنی چاہیے بجائے اس کے کہ میں تقریریں کروں، میں تقریر نہیں کر رہا۔ تو بات یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے کس لیے بنایا، قرآن میں کلیئرلی کہہ دیا، اور یہ
आयतें पढ़ना या कुरान को समझना सिर्फ हमने ठेका लगा दिया मौलवी साहब का काम है। ये काम मौलवी है भाई, पांचे ऊपर करने हैं, इसके लिए मिसवाक का साइज, ये हम में से हर आदमी का काम है कि कुरान के अंदर जो है काम है वो मेरे लिए भी है, सिर्फ मौलवी का ठेका नहीं। हमने बोला यार ये काम बोला गया, तो असल मकसद हमें बताया गया है और ना हमें आगे हमने अपने बच्चों को बताया, क्योंकि हमें पता नहीं। अब हर दफ़ा ये मकसद चेंज होता रहा। पहले ना जाने क्या था, अब अंग्रेज़ी सीखना, बच्चों को ज़्यादा एजुकेशन, प्रेजेंटेशन अच्छी देना, हमारा बच्चा कितना ज़्यादा उसमें कॉन्फिडेंस आ गया है। अल्लाह ने बोला, मैंने इंसान को जब फरिश्तों से बात हो रही तो ये कहा मैंने अब इनको फरिश्तों मेरा क्यों बना रहे हो अल्लाह ताला, हम कोई गलती पे हैं, हमसे कोई कसूर है, मैं इनको इबादत के लिए बना रहा हूँ। ये किसी को पता ही नहीं गया, ना हम अपने बच्चों को बता रहे हैं। प्राइमरी से लेके यूनिवर्सिटी तक को ये बात बच्चों के जहन में डालता ही नहीं। कसम से अगर डालें तो बच्चा वैसे करे। क्यों? हम में से कोई बच्चा, कोई आदमी लेफ्ट हैंड से खाना खाता है क्या? हम में से कोई आदमी नहीं, क्योंकि हमें बताया गया है खाना राइट हैंड से खाओ, राइट से खाते हैं। अगर यही बताया गया होता कि आपको अल्लाह ने अपनी इबादत के लिए दुनिया में भेजा, बाकी सारे काम सेकेंडरी हैं, और ये जो इबादत है कि आप दूसरों की मदद करें, ये सहाबा इकराम की जो ड्यूटी है वो आप अपने ज़िम्मेदारी ले रहे हैं। जितनी जो इस वक्त काबीना है, बड़े खुश नसीब लोग हैं कि आपके ज़िम्मे में ये चीज़ आई है। बशीर सती भाई, आपका बहुत शुक्रिया, आपकी पूरी आफ्ताब राजा और जितने आप लोग हैं, आपने हमें इज़्ज़त दी, हमें बुलाया। बातें करने को बहुत दिल करता है, लेकिन फिर बाद में कोई चीज़ भी एक्सेस हो जाती है तो फिर बोर होना शुरू होंगे। आप सबको मुझे थोड़ी देर बर्दाश्त करने के लिए मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जनाब सरदार अर्शद साहब, नूर थरोड़ी साहब ने 2000 रुपये डोनेशन दिए। अब मैं रज़ा केवान साहब कुछ ऐलान करना चाह रहे हैं तो आगे स्टेज पे। माजरत, आपके लिए जनरेटर सर इंशाल्लाह फाइनल है। वो रिसाक ने जो बोला वो उसने कह दिया तो उसी वक्त फाइनल था, लेकिन वो चाह रहा था कि मैं कहता, तो वो फाइनल है सर। अगर यहाँ कहीं मिलते हैं तो मैं यहाँ से अपना टाइम पे बात करके चला गया था, तो हमारी टीम 3 स्टार 11 ACL 5 में खेल रही है। तो ACL में हमारी जो टीम 3 स्टार खेल रही है उसके CEO साहब की तरफ से 10,000 रुपया बशीर सती साहब के लिए, बेवा और यतीमों के लिए ये फंड में बशीर सती साहब को देने का ऐलान करता हूँ। 10,000। अब बाग वेलफेयर एसोसिएशन के रूए रवा जनाब मदर अब्बासी साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि इस पे और अपने ख्यालात का इजहार करें। मदर अब्बासी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सबसे पहले पासबान मेरा की जो टीम है उसको मुबारकबाद पेश करते हैं, और मैं ख़ास तौर पे बशीर सती भाई का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमें मदऊ किया यहाँ पे इस प्रोग्राम के अंदर, और कराची कैबिनेट जिस तरह उन्होंने बनाई है, और हमारी दुआ है उनके साथ कि वो फ्यूचर में जो उन्होंने कराची कैबिनेट बनाई है वो इस नेक काम को आगे लेके जाएं और फ्यूचर में अच्छा जो है कराची के अंदर काम करें। बशीर सती भाई, एक मिनट करूँगा। बशीर सती भाई, मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपके मेरा के अंदर ख़ास तौर पे हम ज़्यादातर बाग वेलफेयर फाउंडेशन से रिलेटेड मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, बाग वेलफेयर फाउंडेशन का जो हमारा मतलब ज़्यादातर फोकस है वो यतीम बच्चों के और गरीब जो बच्चे हैं उनकी एजुकेशन के ऊपर है। तो बांडी मेरा या किसी और मतलब आपके एरिया में जो यतीम बच्चे हों, गरीब बच्चे हों, उनको न्यू लीड स्कूल सिस्टम बाग में हम ऑफ़र करते हैं इंशाल्लाह। उनके फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन होगी, बुक्स किसी किस्म की कोई चीज़ भी नहीं आपने देनी, आपने सिर्फ जो है हमें उनकी लिस्ट प्रोवाइड करनी है एवरी ईयर। ये हमारे बच्चे हैं, यतीम बच्चे हैं, ये गरीब बच्चे हैं, तो इंशाल्लाह उस स्कूल में उनका एडमिशन होगा, फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, उनको बुक्स, यूनिफॉर्म, शूज़, ETC एवरीथिंग जो होगी वो न्यू लीड स्कूल सिस्टम BWF के रेफरेंस से जो है वो प्रोवाइड करेगी। इसके अलावा हेल्थ के लिहाज से भी हमारा वहाँ पे मेडिसन का थोड़ा बहुत सिस्टम है,
हमारे डॉक्टर खानवेज साहब BWF के मेंबर हैं, वो वहाँ पे रन करते हैं। तो कोई भी आपके एरिया का ऐसा बंदा हो जो मेडिसन 1000, 2000, 3000 तक अफोर्ड नहीं कर सकता, तो वो वहाँ पे भेजें। वो भी BWF पासवान मेरा के रेफरेंस से इंशाल्लाह उनको फुल सपोर्ट करेगी। ये दो काम इंशाल्लाह बाग वेलफेयर फाउंडेशन आपको यकीन दहानी करवाती है ऑन स्टेज पे कि ये दो काम आप जब भी बोलेंगे, जिस टाइम पे बोलेंगे, एजुकेशन में हो गया और हेल्थ में इंशाल्लाह हम आपके साथ शाना बिशाना खड़े रहेंगे। और उम्मीद करते हैं कि फ्यूचर में आप अच्छा काम जिस तरह कर रहे हैं माशाल्लाह फ्यूचर में भी अच्छा काम करेंगे। और हेल्थ और एजुकेशन के लिहाज से जहाँ भी आपको ज़रूरत पड़ी BWF आपके साथ रहेगी। और फिर अगेन थैंक यू बशीर सत्ती भाई, आपने हमें इन्वाइट किया। थैंक यू अल्लाह। अब मैं दावत दूंगा ACL के चीफ ऑर्गेनाइजर जनाब शहजाद अब्बासी साहब को कि उस स्टेज पे तशरीफ रखें। शहजाद अब्बासी साहब। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले तो मैं जितने भी यहाँ हमारे मेहमान आए उन सबको मैं कुरान की आने पे खुश आमदीद कहता हूँ। खुसूसन आज के जो मेहमान खुसूसी हैं राजा अब्दुल रशीद साहब उनको, और हमारे बुज़ुर्ग बाबू अफसर साहब को। उसके बाद मैं पासबान मेरा वेलफेयर को जितने भी काबीना के आज लोगों ने हलफ उठाया उन सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। और मेरी उम्मीद है कि वो बढ़ चढ़ कर जो कराची के इशूज़ हैं उनके ऊपर और जितने भी मसाइल हैं उनको हल करने की में जितनी भी हमारी दूसरी वेलफेयर से उनके साथ मिलजुल कर काम करेंगे। जिस तरह वेलफेयर्स की बहुत सी वेलफेयर्स की बात हुई, जितनी भी वेलफेयर्स हैं माशाल्लाह अपने तौर पर वो बहुत बेहतर काम कर रही हैं और उम्मीद है कि वो आगे भी इसी तरह काम करेंगी। अगर वेलफेयर्स जितनी ज़्यादा होंगी तो उससे क्या होगा कि उससे कंपटीशन होगा। और मैं ये समझता हूँ कि जब कंपटीशन होगा तो काम होगा। जैसे कि सरदार नज़ीर साहब बैठे हुए हैं, उन्होंने जो बातें की कि हमारे यहाँ बहुत से ऐसे डोनर्स थे जो माशाल्लाह अच्छा खासा डोनेट पहले करते थे, लेकिन फिर वो कुछ मसाइल ऐसे आ गए कि वो उन्होंने देना बंद कर दिया। लेकिन अब जैसे कि वेलफेयर्स दूसरी वेलफेयर्स आई तो उनको देखा देखी वो डोनर्स दोबारा एक्टिवेट हुए और उसी तरह हमारा ये काम सारा चलना शुरू हो गया। उसके बाद बाग से मैं बात करूंगा, हमारी जितनी भी वेलफेयर्स हैं, बाग वेलफेयर फाउंडेशन जैसे मधुर भाई ने कहा, उसके साथ शाइन वेलफेयर फाउंडेशन, इनकी जितनी भी कंट्रीब्यूशन हुई आपके साथ, जितने भी मामलात हुए, पासबान मेरा वेलफेयर एसोसिएशन के साथ हम मिलजुल कर बशीर सत्ती साहब आपके साथ काम करेंगे। उसके बाद अब जैसा कि एक टूर्नामेंट कराची में इस वक्त आवाज़ क्रिकेट लीग के ज़ेर साया ACL हो रहा है और इसका ये सीज़न 5 है और इस टूर्नामेंट का मैं चीफ ऑर्गेनाइज़र भी हूँ। तो बेसिकली आवाज़ खल का ये जो मंशूर का जो टूर्नामेंट कराने का मकसद था वो ये था कि हम एलियान बाग पांडी के जितने भी लोग कराची में रहते हैं इन सब का एक गेट टुगेदर हो जाता है और उसके अलावा जो हमारा मिलना मिलाना है वो इस तरह चलता रहता है। तो आप सब लोगों से गुजारिश है कि 31 जनवरी को जो फाइनल है उसमें भी सब लोग पार्टिसिपेट करें और जो हमारा ये जो मकसद है मिलने मिलाने का, और इंशाल्लाह ये काम दायम रहेगा। शुक्रिया। अब मैं दावत दूंगा समाजी कारकुन जनाब जायद खटक साहब को कि स्टेज पे तशरीफ लाएं और अपने ख्यालात का इजहार करें। जायद खटक साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आप तमाम पासबान मीरा जो यहाँ पे तंजीम बनी है उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस बेहतरीन ऑर्गेनाइजिंग तंजीमी कमेटी में मुझे बुलाया और मुझे दावत दी। उसके बाद मैं जनाब मेहमान जो खुसूसी जनाब राजा अब्दुल रशीद साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जो बहुत ही अपना कीमती टाइम में से उन्होंने वक्त निकाला यहाँ पे आए हुए, और साथ ही मैं अपने मोअज़्ज़िज़ बाबू साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। मलक अरशद साहब की बातों के बाद तो मेरे ख्याल से कोई बात रही नहीं। जब भी आपका नंबर आखिर में आएगा तो इस तरह की प्रॉब्लम आपके साथ होगी कि आपको कुछ बोलने के आप मौका नहीं मिलेगा, बहुत कम। लेकिन बात यह है कि आज जिन लोगों ने इस तंजीम में हलफ उठाया है, हलफ लेने का ये हरगिज मकसद नहीं है कि आप घर में बैठ जाएं। ओहदा लेने का हरगिज ये मतलब नहीं है कि आप बैठ जाएं कि भाई मैं एक जिम्मेदार बन गया हूँ पासबान मीरा वेलफेयर का। तो इसके लिए अब आपने आज से अपना जो जिंदगी का जो आपका मकसद है वो अब ये बनाना है कि हमने दूसरों के लिए काम करना है।
बेसिकली जिस पे बीच में जो लिखा हुआ है पासबान मीरा वेलफेयर, वेलफेयर का मतलब क्या है? सबसे पहले इसकी डेफिनेशन ये होती है कि फलाह बहबूद। फलाह बहबूद में बहुत सारी चीज़ें हैं, जिस तरह के बयान किया था हमारे जो एक सेक्रेटरी थे गालिबन या सदर थे इस तंजीम के, उन्होंने उसको बड़ा डिटेल के साथ बताया कि हमने फलां जगहों पे मदद करनी है। जितने भी गरीब लोग होते हैं, चाहे वो किसी भी किस्म के मसाइल से, ख़ास तौर पे आपके जो गांव है उसमें दरपेश जितने भी मसाइल होंगे उनको, उसके अंदर आप लोगों ने बढ़ चढ़ कर उनकी मदद करनी है। और आपने उनकी मदद किस तरह करनी है? आपने साहिब हैसियत लोगों को ढूंढना है, देखना है और उनको अपने तरीक़ेकार से और अपने काम से और अपने अखलाक से मुतासिर करना है। उनसे एक फंड रेजिंग करनी है और इतनी भरपूर फंड रेजिंग करनी है कि आप लोग खुलकर लोगों की मदद कर सकें। अगर सिर्फ ये ओहदेदार ही रहेंगे अपनी जगह पे तो फिर मामला बिगड़ता जाएगा। आप लोगों ने इस तंजीम को आगे बढ़ाना है। बढ़ाने के लिए आपने अपने दोस्तों को ढूंढना है कि कौन कौन ऐसे लोग हैं और उसके पास जाके विजिट करना है, वहां पहुंचना है। आप लोगों को शुरू में बहुत ही तकलीफें, बहुत ही परेशानियों का यकीनन सामना होगा। वो इसकी वजह ये है कि आज तक अगर हमारे जैसे माजरत के साथ अगर हमारी मस्जिद में एक मौलवी साहब भी 2 बार चंदा मांग लेता है ना, तो हमें डाउट हो जाता है कि यार ये चंदा पता नहीं मस्जिद में भी लग रहा है कि नहीं। तो आप लोगों को भी ऊपर लोग उंगलियां उठाएंगे, तंज करेंगे, बातें करेंगे, लेकिन क्योंकि आप के ऊपर जितनी कीचड़ मतलब जितनी बातें आपके ऊपर होंगी, जितना तंज आपके ऊपर होगा, उतना ही आप लोगों को नेकियां और सवाब मिलता रहेगा। क्योंकि जब लोग आपकी गीबत करते हैं, आपकी चुगलियां करते हैं, आपके पीछे बातें करते हैं, तो वो दरअसल आपके जो गुनाह है वो लेते हैं और अपनी नेकियां आपकी झोलियों में डालते रहते हैं। तो आप लोगों ने इन चीजों में घबराना नहीं है कि फलां ने मुझे ये बोल दिया, या तुम चंदे मांगने आ गए, या तुम ये कर रहे हो, या तुमने खा लिया, या ये बंदा सही नहीं है, वो बंदा सही नहीं है। सबसे पहले तो आप लोगों ने आपस में जितने आप लोग ओहदेदार हैं, जो भी यहाँ पे बशीर साहब हैं, उनको एक कंप्लीटली एक अच्छी टीम बनानी है। सबको यक्का, सबसे पहले आप लोगों का यक्का लाजमी है। अगर आपका आपस में यक्का नहीं होगा तो आप लोगों के लिए बहुत मुश्किल होगी। और इसलिए आप लोगों को सबसे पहले एक दूसरे को रिस्पेक्ट देनी है। जितना आप एक दूसरे को रिस्पेक्ट देंगे उतने मामलात आगे की तरफ चलेंगे। आपने कभी भी ये नहीं सोचना कि आज ये जो बंदा बात जिसके लिए कर रहा है इसमें इसका जाती मफाद है। आपने बिल्कुल उसको ईमानदारी के साथ, जिस तरह आपने अपने हलफ में कहा कि हम अपनी जो हमारी ख्वाहिशात हैं उसको एक साइड में रखेंगे। अगर आप तंजीम के अंदर कभी भी ये सोचते हैं कि मैं ये अपने बंदे को फायदा दे दूं या मेरे इस बंदे का काम हो जाए, तो आपकी तंजीम फिर नहीं चलेगी। आपने सबके लिए चलना है और एक जैसा अपनी ख्वाहिशों को मारना है। जिन लोगों ने ओहदे लिए खास तौर पे, वो जो ओहदेदार हैं, उनको अपने ख्वाहिशात को मारना होगा। बाज़ औक़ात आपकी तंजीम, आपकी कमेटी जो भी बनेगी वो उसके ऊपर एग्री नहीं होगी, वो डिसएग्री करेगी, लेकिन इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं होगा कि आप उसमें से वापस आ जाएं। तो मैं इस तंजीम को जो भी यहाँ पे बनी है, पासबान मीरा वेलफेयर सोसाइटी, और दुआ गो कि अल्लाह ताला आप लोगों को इस्तिकामत दे, साबित कदमी के साथ आप लोग अपनी मंजिल की तरफ जाएं और लोगों की भरपूर मदद करें। और मैं अपनी तरफ से इस तंजीम के लिए 3000 रुपये कैश का ऐलान करता हूँ, जो मैं जनाब अजमल साहब को देता हूँ। यहाँ पे ये थे जनाब ज़ायद खटक साहब। अब मैं दावत दूंगा शौकत चेयरमैन साहब को कि स्टेज पे तशरीफ लाएं और अपने ख्यालात का इज़हार करें। शौकत चेयरमैन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, तबारकल्लज़ी बियदिल मुल्कु अला कुल्लि शैइन क़दीर। मैं खुद भी एक सोशल वर्कर हूँ। पाक सोशल वेलफेयर एसोसिएशन मेरी तंजीम है, रजिस्टर्ड है कराची में, कराची डिवीज़न पे। 1990 से मैं काम कर रहा हूँ, मैं ख़ुद उसका चेयरमैन हूँ। और आज मुझे यहाँ पे मंजूर अब्बासी भाई और फयाज भाई, अफजाल भाई, वकास भाई, जाहिद भाई, उन्होंने मुझे यहाँ मदऊ किया। मैं आप लोगों के दरमियान खड़ा और मुझे बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि आजकल के ये बड़े मुश्किल दौर है जब ये आप इस तरह का ज़हन लेके चलें या कोई काम करें। क्योंकि अगर 22 करोड़ आवाम है पाकिस्तान की, तो उसमें मेरा ख्याल 4-5 करोड़ लोग इस तरह होंगे जो ये काम कर रहे होंगे, अच्छा काम। यानी इसमें जो सबसे, अभी जाहिद खड़क साहब ने बताया कि सबसे जो अच्छा नाम है वो वेलफेयर का है। बाकी तो पासबान, सोसाइटी, बांडी मेरा मैं खुद भी पठान हूँ,
बांडी कहते हैं, वो जहाँ मवेशी बांधते हैं, पश्तो में हम कहते हैं बांडा, अगर तब वो बांडा। और मीरा कहते हैं हम जंगल को, जैसे अजमका भी कहना बिल्कुल खुश्क अजमका भी, अगर तब वो मेरा आगे तो होगा ना। तो ये वो चीज़ है। बाकी पासबान जो आप लोगों ने बनाई है, कब से रजिस्टर है मुझे अभी इसका पता नहीं है। चेयरमैन साहब ये सब राजा अब्दुल रशीद साहब और 1 साल 2 साल हो गए, और अल्लाह का फजल है मैं तो 30 साल से काम कर रहा हूँ इस मामले के अंदर हूँ, और खुद ही चला रहा हूँ सारे मामले। और अल्लाह के फजल से अल्लाह की मदद होती है इसमें। जब आप इस काम के लिए निकलते हैं ना तो अल्लाह की मदद होती है। 2017 के अंदर मैं अपने इलाके के अंदर पानी लगवा रहा था, एक जगह से पानी लगवा रहा था जो एक नामुमकिन काम था। अभी भी वहाँ कोई नहीं लगा सकता। अभी इलेक्टेड वहाँ पे वाइस चेयरमैन जो चेयरमैन गुजरे गवर्नमेंट के भी, मैंने उनको चैलेंज किया होता, मैंने कहा आप लोग लगा लो, मैं 10 kg मिठाई आपके घर पे भेज दूंगा। यानी वेलफेयर का काम इतना मुश्किल काम है। तो मैंने 2017 के अंदर वो पानी का काम करवाया, तो मेरे खिलाफ एक FIR कट गई टीपू सुल्तान थाने के अंदर। तो मैं वो 3 पार्टियाँ थी और मैं अकेला था, और मेरे साथ जो जिस पार्टी से मैं काम करवा रहा था वो MQM की पार्टी थी, अली रजा आब्दी वो काम करवा रहे थे। जब हम कोर्ट के अंदर पहुंचे तो उन्होंने 8-10 लोग खड़े कर दिए, उनको वो हीरोइनची थे, हीरोइन पीने वाले हैं, नशा लोग नहीं होते, उनको जो है कपड़े वपड़े पहना के कॉटन वाटन को हमारे खिलाफ खड़े कर दिए। मैंने कहा यार उन बंदों को लाओ जिन्होंने हमारे खिलाफ FIR काटी हुई है, वो पार्टी बंदों को लाओ जो मैन लोग हैं, जो ये चाहते हैं कि ये पानी नहीं लगे। तो वो बहरहाल 2-3 पेशियाँ जब हो गई तो मजिस्ट्रेट साहब ने कहा बोले ये इसका थोड़ा चेक करके आओ, ये पानी शौकत खान साहब से कितना दूर है। तो मुझसे तकरीबन 1000 फीट जो है ना मुझसे दूर पड़ा हुआ है वो, हाजी सूबेदार के होटल के साथ बता रहा हूँ मैं आपको। तो पानी न मेरे घर में जा रहा है ना कहीं जा रहा है। बहरहाल वो वहाँ का एक बंदा आया, उन्होंने चेक वेक किया, उन्होंने बोला भाई ये तो बड़ा दूर का काम है और शौकत साहब के घर से भी तो बहुत दूर है। मैंने वहाँ पे कुछ बेवाएँ, कुछ खवातीन, कुछ मर्दों को कोर्ट के अंदर पेश कर दिया। ये मैं इसलिए डिटेल बताना चाह रहा हूँ कि वेलफेयर जो काम है ये बहुत मुश्किल काम है, इसको इतना आसान ना समझें आप लोग, ये आपको बड़े मुश्किल रास्ते डाल देगा। और लेकिन अल्लाह की मदद जब आपके साथ होगी आपको खुद ब खुद वहाँ से नज़ारा मिलेगा। तो जज साहब ने कहा कि ये कनेक्शन भी लगेगा, चाहे इसके लिए मेरी सीट भी चली जाए तो कोई मसला नहीं है। इतनी बड़ी बात है उस जज साहब के लिए। तो मकसद कहने का ये है कि अभी जाहिद खटक साहब ने जो बातें मैंने कहनी थी वो उन्होंने कह दी। अब मुझे अच्छा भी लग रहा है कि वो बातें मैं बार बार बोलूँ, लेकिन ये है कि ये जो वेलफेयर आप लोगों ने बनाई है, जो इसमें आपके एम्स हैं, मंशूर हैं, जो अभी एक साहब ने बयान किए, उसके अंदर थोड़ा सा मैं एक ऐड करना चाह रहा हूँ। जो उन्होंने कहा कि जैसे मैयत हो जाती है, हम उस मैयत को उसकी तदफीन उसके घर तक पहुँचाएंगे, यानी कब्र में डालेंगे। ये टाइम भी असर का टाइम है, जब इंसान इस दुनिया से जाता है तो यही टाइम होगा, चाहे वो रात में जाए चाहे वो दिन में जाए, लेकिन वहाँ पे उसका असर का टाइम होगा। कब्र के अंदर असर का टाइम होगा, और थोड़ी देर के बाद उस पर मगरिब हो जाएगी। तो मकसद है ये इंसानियत की खिदमत है। और हम इस टाइम जो बैठे हुए हैं, जिनका जहन बना हुआ है, ये अल्लाह ताला ने आप लोगों को बिठाया हुआ है, आप खुद नहीं बैठे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको इस काम के लिए निकाला है, क्योंकि जब तक आपके साथ अल्लाह की मदद नहीं होगी आप कोई काम कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। क्योंकि कहते हैं जब आप बुराई करने जाते हैं तो आपसे फरिश्तों को हटा दिया जाता है, और जब आप अच्छा काम करने जाते हैं तो फरिश्तों को आपके साथ मामूर कर दिया जाता है कि ये लो जी, ये इंसान काम कर रहा है, इंसानियत की खिदमत कर रहा है। इसमें सिर्फ आप लोग, ये जो आपने अभी कहा ना, मैं सिर्फ एक माजरत के साथ, ये चेयरमैन साहब भी बैठे हुए, बाबू साहब भी बैठे हुए, और राजा अब्दुल रशीद साहब से मेरी पहले भी 1-2 मुलाकातें हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि उसमें आप ये नहीं कहें कि जो उसके वारिस है वो उसको वापस करेंगे। जब आप उसकी तदफीन कर रहे हैं, आया एक शख्स कराची के अंदर जो मेहनत मजदूरी करने आया है, उसकी वाइफ है वहाँ पे, उसके बच्चे नहीं है, उसकी यहाँ मैयत हो जाती है, तो आप उस किससे पैसे वापस लेंगे? तो आप कोशिश करें कि उसके लिए कोई ऐसा तरीका इख्तियार करें कि वो लाश अपने घर पहुँचे, अपने कब्र में पहुँचे, और उनसे ये मामला आप वापसी का तकाजा ना करें, बल्कि उसके लिए फिर आप अपनी जो फंडिंग है उसी टाइम इमरजेंसी फंडिंग का आगाज़ कर दें। अपनी जो कैबिनेट है, जैसे अभी यहाँ पे वाइस चेयरमैन जो है हमारे नज़ीर अब्बासी साहब की क़यादत में ये टीम बनी है, मैं उनको भी मुबारकबाद देता हूँ। इससे पहले जिन्होंने ये टीम बनाई है उनको भी मुबारकबाद देता हूँ, क्योंकि ये मुबारकबाद की मुस्तहिक है। ये अल्लाह ताला ने आप लोगों को इस रास्ते में निकाल दिया है। बाकी मैं बज़ाते खुद, मेरा ये रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी मौजूद है,
ये मेरा 30-25 साल का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी मौजूद है और मेरा करेक्टर सर्टिफिकेट जो मैंने अभी हाल ही में, क्योंकि मैं हर 1 साल के बाद थाने से उसको रिन्यूअल करवाता हूँ कि चेक कर दो कहीं मेरे खिलाफ कहीं कोई मसला वसला तो किसी ने नहीं किया हुआ है। ये आप देख सकते हैं। और भाई तो मकसद कहना कि है ये मैं सिर्फ आप लोगों के लिए लाया हूँ, ये चीज़ें आपके साथ मौजूद होनी चाहिए और आपका बैकबोन मजबूत होनी चाहिए। बैकबोन जो आपकी है ना वो मजबूत होनी चाहिए। बैकबोन का मतलब सिर्फ ये देखें फाइनेंशियली नहीं, आपका जिस्मानी और रूहानी ताकत तीनों होनी चाहिए आपके अंदर, तीनों। अगर आपके पास पैसा है, आपकी रूहानी ताकत नहीं है, तब भी आप वेलफेयर का काम नहीं कर सकते। आपके अंदर जिस्मानी ताकत नहीं है, फिर भी आप काम नहीं कर सकते। इसके लिए आप अल्लाह से दुआ किया करें कि या अल्लाह मुझे फाइनेंशियली भी और रूहानी भी और जिस्मानी ताकत अता करे ताकि मैं इसमें खिदमत कर सकूं। क्योंकि इंसान की खिदमत है ना, इंसानियत की खिदमत है। इसके अंदर पानी, रोटी और आपके सारे काम आएंगे जो इंसान की ज़रूरत की काम है। सिर्फ ये नहीं है कि आपने हमारे इलाके के अंदर अभी एक बेवा खातून है, अभी हाल ही में 3 साल हो गए उनके जो है ना हस्बैंड का इंतकाल हुआ। इमाम साहब थे, हमारे पेश इमाम साहब थे। आप यकीन करें हमारे ये मंजूर अब्बासी भाई जो सब्जी, वहाँ पे सब्जी का इनका कारोबार है, तिजारत का काम करते हैं, बाकायदा हफ्ते में उनके लिए आलू, प्याज, टमाटर पहले से ही भेज रहे हैं। वेलफेयर का काम तो वो पहले से ही कर रहे हैं। ये वकास हो गया, ब्याज हो गया, सब पहले से काम कर रहे हैं। मकसद कहने का ये कि इंसानियत के अंदर आपके अंदर जब तक इंसानियत नहीं होगी ना, इंसानियत का जज्बा नहीं होगा, आप खिदमत नहीं कर सकते। सबसे पहले इंसान इस दुनिया में आया, इंसान जो है ना पैदा हुआ है ना, तो इंसान की शक्ल में अशरफुल मखलूक़ात है ये। तो मकसद कहना कि यह है कि पर्ची भी आ गई है मेरे पास, मैं फाइनेंशियली भी आप लोगों के साथ हूँ, रूहानी भी आप लोगों के साथ हूँ, जिस्मानी तौर पे भी आपके साथ हूँ। मलिक शौकत खान मेरा नाम है, मैं वेलफेयर चला रहा हूँ। बाकी जहाँ भी मेरे खिदमत की ज़रूरत पड़े, मैंने 22 साल क्रिकेट की कप्तानी भी की है, क्रिकेट का कप्तान भी रहा हूँ, मैं मून स्टार क्रिकेट क्लब का कप्तान रहा हूँ 22 साल। तो इंशाल्लाह जो आपकी ये चल रही है इसमें तकरीब में भी आपके साथ मैं शिरकत करूँगा इंशाल्लाह। ठीक है, बहुत शुक्रिया। शाहीन वेलफेयर बाग के जनाब मेहताब अब्बासी साहब दरख्वास्त करूँगा स्टेज पे। मेहताब अब्बासी साहब। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली व सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। जनाब राजा रशीद साहब, बाबू अली अफसर साहब और दीगर हाज़रीन महफ़िल, अस्सलामु अलैकुम। सबसे पहले तो मैं शाहीन वेलफेयर फाउंडेशन बाग की तरफ से आपको इस नेक काम का आगाज़ करने पर दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ और इंशाअल्लाह शाहीन वेलफेयर फाउंडेशन बाग आपके साथ शाना बशाना खड़ी है और आपके हर प्रोजेक्ट में इंशाअल्लाह हम आपका तावन करेंगे। हाज़रीन महफिल, मुझे याद है कि जब शाहीन वेलफेयर फाउंडेशन बाग की हज़बरदारी की तकरीब थी एक मस्जिद में और हम 15 से 20 नौजवान थे और लोग हम पे तनकीद करते थे कि ये नौजवान कुछ नहीं कर सकते, और आज अल्हम्दुलिल्लाह ये काफ़िले की शक्ल अख्तियार कर चुकी है शाहीन वेलफेयर फाउंडेशन बाग। आपने अपनी हिम्मत नहीं हारनी, हौसले पस्त नहीं करने, अल्लाह ताला आपकी इंशाअल्लाह ज़रूर मदद फरमाएंगे। हाज़रीन महफिल, शायर ने क्या खूब कहा, इरादे जिनके पुख्ता हो नज़र जिनकी खुदा पर हो, इरादे जिनके पुख्ता हो नज़र जिनकी खुदा पर हो, वो तला तमखेज़ मौजों से घबराया नहीं करते। और सबसे अहम चीज़ तालीम है, अपने बच्चों की तालीम और तरबियत पर तवज्जो दें। जैसा कि मज़र साहब ने कहा कि तालीम के मामले में मैं आपका तावन करूंगा, मैं आपकी सोच को सैल्यूट पेश करता हूं मदर साहब। मेरे साथियों, बीइंग अ स्टूडेंट यूनिवर्सिटी ऑफ कराची, मेरे साथ ऐसे नौजवान थे जिनका ख्वाब था कि मैं डॉक्टर बनूं, जिनका ख्वाब था कि मैं इंजीनियर बनूं, लेकिन खुदारा उनके पास फैसिलिटी नहीं थी, उनके पास सपोर्ट नहीं थी। और हर किसी की ख्वाहिश होती है को अपना कैरियर बनाए, लेकिन उन लोगों के पास सपोर्ट नहीं होती। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आपने किताब और कलम का साथ देना है और उन मुस्तहिक और बेसहारा लोगों की मदद करनी है जिनके पास तालीम हासिल करने के लिए फाइनेंशियली तौर पर वो कमजोर होते हैं। माजरत के साथ, वक्त की कमी के साथ मैं आपसे इजाजत तलब करूंगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पासबान
मेहरा वेलफेयर फाउंडेशन पाइंदाबाद। थैंक यू। बहुत शुक्रिया। अब मैं औरंगजेब अब्बासी साहब समाजी कारकुन हैं, उनसे दरख्वास्त करूँगा औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे इंतहाई काबिल एहतराम मुअज़्ज़िज़ीन बाग बांडी, चतुरनाथ, चांद और कराची में जो हमारे हज़ारे के अभी भाई जो सामने बैठे हैं, खटक साहब हैं और हमारे शौकत भाई और दूसरे तनोली भाई, उनको खुश आमदेद भी कहता हूँ, वेलकम कहता हूँ। और हमारे सदर महफल जनाब बाबू अली अफसर साहब, राजा अब्दुल रशीद साहब और नौजवान, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जैसा कि भाइयों ने बात की, जैसे पहले भाई बात कर रहे थे कि तकरीबन जैसे फाउंडेशन के हवाले से या वेलफेयर के हवाले से तकरीबन बातें तो सब ने कर दी, आखिर में आके बड़ी प्रॉब्लम होती है, जाहिर सी बात है वही बातें करनी नहीं पड़ती। बहरहाल बहुत अच्छी चीज़ है। सबसे बड़ी बात जो मैं आप यहाँ ऐड करना चाहूँगा कि वेलफेयर से सबसे बेहतरीन तो ये चीज़ मैंने अखज़ की है कि इससे एक माहौल पैदा होता है, और जब माहौल दो तरह के होते हैं, अल्लाह ताला ने इंसान को सलाहियत दी है, अब उस सलाहियत को वो नेगेटिव इस्तेमाल करता है या पॉजिटिव इस्तेमाल करता है, वो उसके इख्तियार में अल्लाह पाक ने दी है। अब जाहिर सी बात है जो गलत काम करते हैं उनके अंदर भी सलाहियत होती है तो गलत करते हैं, सलाहियत के बगैर तो कुछ नहीं कर सकते वो भी। अब ये अल्लाह की देन है, मैं समझता हूँ कि अल्लाह की तरफ से ये आपके ऊपर ये बहुत बड़ा एहसान है और अल्लाह की ये नेमत है कि अल्लाह ताला ने आपको एक ऐसे काम के लिए चुना है कि जिससे दुनिया में भी लोगों की फलाह होगी और अल्लाह पाक आखिरत में भी इसका आपको अजर देंगे। तो इससे बढ़कर जो माहौल आप पैदा करते हैं, जिस तरह अभी मैं जिक्र करूंगा ACL टूर्नामेंट्स हो रहे हैं, तो गुज़िश्ता 4-5 साल से कराची के अंदर एक टूर्नामेंट हो रहा है ACL के नाम से, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त तरीके से वो कराते हैं, मैनेज करते हैं। तो टूर्नामेंट के अंदर मैंने ये देखा है कि नौजवानों के अंदर एक माहौल पैदा हो गया, और जो नौजवान नेगेटिव तरफ जाना चाहते थे वो पॉजिटिव तरीके की तरफ आ रहे हैं। और उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि अब पूरा साल वो नौजवान किसी गलत एक्टिविटी की तरफ नहीं जाते, बल्कि वो एक अच्छे काम की तरफ उसकी फोकस रहता है, और फिर वो तंजीमों के साथ रिलेटेड होते हैं। तो इससे अभी मैं एक जिक्र करूंगा आपके सामने कि गुज़िश्ता 3-4 साल पहले मेहरा के अंदर अनफॉर्चुनेट, अफसोसनाक 2-3 ऊपर नीचे वाक़यात हुए थे, जिसमें सामने आप तस्वीर नज़र आ रही होगी जमील भाई की, वो इस भी अफसोसनाक वाक़े के अंदर उनका इंतकाल हुआ। उसके बाद जाहिर सी बात है इलाके का माहौल जो है काफ़ी मुतासर हुआ। उसके बाद गुज़िश्ता साल जैसे बांडी मेहरा अपना वेलफेयर सोसाइटी जो पासबान वेलफेयर ने एक इनिशिएटिव लिया था, एक तंजीम बनाई, उससे उनका माहौल काफ़ी इससे बेहतर होगा। और इंशाअल्लाह मुस्तकबिल में जो गलत तरफ लड़के जा रहे थे वो पॉजिटिव सोच के साथ, पॉजिटिव तरीके के साथ एक अच्छे काम में अपने आप को सर्व करेंगे। तो मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कराची कैबिनेट पासबान वेलफेयर को कि इंशाअल्लाह उम्मीद है वो कराची के अंदर अपने इलाके के लोगों के लिए एक बेहतर खिदमात अंजाम देंगे, और जो इलाके के अंदर काम कर रहे हैं वो भी इंशाअल्लाह एक अच्छे तरीके से काम करेंगे, और तमाम जितनी भी वेलफेयर काम कर रही हैं वो एक अच्छी सोच के साथ इंशाल्लाह काम करेंगी। तो उसके अंदर अल्लाह की तरफ से भी आपको मदद होगी और इंशाल्लाह वो आप कामयाब भी होंगे। तो मैं एक मतलब फिर आप तमाम दोस्तों को मुबारकबाद पेश करता हूँ जिन्होंने ये तंजीम बनाई, और इंशाल्लाह भरपूर मेरी सपोर्ट आपके साथ होगी इंशाल्लाह, जहाँ भी कराची के अंदर भी और इलाके के अंदर भी इंशाल्लाह जब भी मुझसे रब्ता हुआ मैं आपके साथ भरपूर सपोर्ट करूँगा। और आज मैं चूँकि आपका इफ्ताह है यहाँ पर, तो मैं 5000 रुपये का ऐलान करता हूँ। मेरी तमाम मुकर्रीन से गुजारिश है कि हाल इंतज़ामिया हमें बार बार फोर्स कर रही है। हमारा टाइम 5 बजे तक था, जो 3-4 लोग मेहमान ज़रूरी हैं, मेरी उनसे भी ये हम्बल गुजारिश है कि टाइम की कमी को मरूज़ खातर लाकर 2 मिनट में अपनी बात मुकम्मल करें। अब मैं सवाल न्यूज़ के डायरेक्टर फरासत भाई को दावत दूँगा कि वो भी टाइम के हिसाब से बात करें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके इस इवेंट को कवर किया हम लोगों ने।
ماشاءاللہ لوگوں کی کافی تعداد یہاں پہ ہے اور یہ سب سے بڑی مشن کی کامیابی ہوتی ہے. جو کاز آپ لے کے چل رہے ہوتے ہیں اس میں بہت سارے لوگ آئے ہیں اور اس میں باہر سے بھی جو لوگ آئے ہیں ان کا بھی بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. اور پاسبان میرا ویلفیئر ایسوسیشن کے عہدیداران ماشاءاللہ ان سب کو بہت بہت مبارک ہو. ہمیں یہ مدعو کیا تھا کوریج کے لیے اور اس کا بھی میں رمیز عباسی صاحب ہیں ان کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. اور ہماری انشاءاللہ تمام تر سپورٹ فیوچر میں بھی ابھی بھی ہے اور آگے بھی انشاءاللہ ہم لوگ ان کے ساتھ رہیں گے. بہت شکریہ آپ لوگوں کا. سوال نیوز ٹی وی کا. اب میں دعوت دوں گا حاجی اقبال صاحب کے فرزند فہیم اقبال صاحب اور ساتھ گزارش کروں گا کہ اپنی بات 2 منٹ میں مکمل کیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسٹیج پہ بیٹھے قابل احترام پنڈال میں بیٹھے ساتھیو السلام علیکم. میں صرف آپ کے سامنے ایک بخاری شریف کی حدیث رکھوں گا. اگر آپ بخاری شریف کو کھولیں تو پہلی حدیث ہے انما الاعمال بالنیات. ہر عمل کا دار و مدار نیت پہ ہوتا ہے. نیت خیر خواہی کی ہوگی, نیت بھلائی کی ہوگی, نیت اچھائی کی ہوگی تو اللہ پاک خیر کے فیصلے فرمائیں گے. اور ویلفیئر کے بنیادی مطلب خدمت ہے. خدمت سے خدا ملتا ہے. اگر آپ خدا کو ڈھونڈنا چاہتے ہیں تو آپ لوگوں کی خدمت کریں, آپ خدا کے قریب تر ہو جائیں گے. اللہ پاک کی وحدانیت نظر آئے گی, اللہ کی مدد نظر آئے گی. تو میرا تعلق پاکستان مسلم لیگ نون سے ہے. ہم عموماً لوگوں کی خدمت کرتے رہتے ہیں, سیاسی حوالے سے بھی اور سماجی حوالے سے بھی ہم کام کرتے رہتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں, میرا خلاصہ یہ ہے کہ آپ کی نیت کا مثبت ہونا کسی بھی ادارے کی کامیابی کے لیے بہت ضروری بات ہے. اگر نیت صحیح ہوگی تو انشاءاللہ کامیابی ہوگی. ہم آپ کے ساتھ ہیں. نو منتخب عہدیداران کو بہت بہت مبارک ہو. یہ خدا کو تلاش کرنے کا ایک راستہ ہے اور امید کرتے ہیں کہ آپ اس میں ضرور اپنی منزل پائیں گے. ہماری دعائیں, نیک خواہشات عملی طور پہ, جانی طور پہ ہر طرح سے آپ کے ساتھ ہیں. جب بھی آپ نے ہمیں خدمت کا موقع دیا ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں انشاءاللہ. بہت شکریہ جنہوں نے ہمیں یہاں مدعو کیا. مجھے یہاں بیٹھ کے بڑا اچھا لگا کہ انسانیت پہ کام ہو رہا ہے. تو آپ تمام لوگ قابل مستحق ہو, قابل دید ہو, قابل رشک ہیں. میں تمام لوگوں کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آج کے اس پلیٹ فارم سے وہ سب یہاں اکٹھے ہوئے اور انسانیت کی خدمت کی بات ہے. بہت شکریہ سر, بڑی مہربانی. جی اب میں ملک فہیم صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ ملک فراز تنولی صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پاسبان میرا ویلفیئر سوسائٹی کے تمام مقررین کو اور میزبانوں کو میں اپنی طرف سے خوش آمدید کہتا ہوں. اور میں ہیلو. اس کے علاوہ میں تمام مہمانوں کو اور تمام اپنے دوستوں کو اپنی طرف سے سلام پیش کرتا ہوں. اور بہت نیک کاز ہے, بہت نیک مقصد ہے. اللہ پاک آپ تمام لوگوں کو اس مقصد میں کامیابی دے اور اس ویلفیئر کو اللہ پاک دن دگنی رات چگنی کامیابی عطا فرمائے. اس کے علاوہ میرا گلا خراب ہے, میں زیادہ بول نہیں سکتا ہوں. بہت شکریہ. یہاں پہ ایک ضروری اعلان تھا. راجہ زبیر صاحب نے 5,000 روپے ڈونیٹ کیے پاسبان میرا ویلفیئر سوسائٹی کراچی کے لیے, ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں. ملک اجمل صاحب نے 5,000 کا اعلان کیا ہے, ان کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں. بابو صاحب کی ایک چیف گیسٹ کہہ رہے ہیں آپ 2 حضرات کے لیے کہ آپ کا اعلان کم ہے. اجمل میر صاحب نے 10,000 اعلان کر دیے اور بہت شکریہ اجمل میر صاحب آپ کا. اور زبیر بھائی نے بھی 10,000 کا اعلان کیا. بہت شکریہ آپ دونوں کا. ہمارے بہت ہی ہمارے علاقے کے ویلفیئر میں بہت بڑے نام ہے. بابو صاحب کی ایک بات کا آخر میں جواب دینا چاہوں گا. بابو صاحب آپ کی ہر تنقید پاسبان میرا ویلفیئر سوسائٹی بانڈی میرا ایبٹ آباد پاسبان کراچی کے لیے, ہر اس شخص کی تنقید کے لیے ہمارے وہ 24 ممبران ایبٹ آباد والے, 24 کراچی والے ہر وقت تیار ہیں آپ کی ہر تنقید کے لیے, تنقید برائے اصلاح کے لیے. ہم اپنے ان لوگوں کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں جو باہر سے ہمارے مہمان آئے. آپ تمام حضرات نے ٹائم دیا. اب میں سرپرست اعلیٰ سے گزارش کروں گا کہ وہ اسٹیج پہ آئیں اور 2 منٹ میں اپنے تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کریں. بہت شکریہ.
सॉरी अगेंस्ट द शेड्यूल, ये कैसे मुमकिन है कि हम अपने जो चीफ गेस्ट है उनकी आवाज़ तक ना सुने, भले उनकी तबीयत कितनी भी है। तो प्लीज़ सर मैं थोड़ा सा डिस्कनेक्ट करते हुए, लोग आपको सुनना चाहते हैं। राजा रशीद साहब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज सबसे बड़ी खुशी तो ये है कि जिन्हें हमने 10 साल में मुलाकात नहीं हुई, 20 साल में मुलाकात नहीं हुई, आज हम इकट्ठे बैठे हुए। हकीकत तो ये है कि मैं अभी भाभी साहब से यही डिस्कस कर रहा था कि जब मैं बहुत छोटा था तो अगर बाड़ी में किसी का इंतकाल हो जाता था, बाग, चाण, सेरी, ठाठी, सारे गांव से लोग आते थे। सारी हमारे जितने भी इधर उधर गांव हैं वो एक फैमिली की तरह हम सब रहते थे। आज बहुत सारी दूरियां हुई, लेकिन अल्लाह ताला उन लोगों को हमेशा आबाद रखे जिन्होंने ये वेलफेयर तंजीमें बनाकर फिर हमें इकट्ठा कर दिया, और ये बड़ी खुशी की बात है। और आज हम सारे इकट्ठे हैं और हमें चाहिए, देखें, जहाँ तक सदका खैरात देने का ताल्लुक है, बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि हमारे पास जो फालतू चीज़ें होती हैं वो खैरात की जाए, लेकिन वो दरअसल खैरात नहीं है। खैरात वो है कि अगर आपके 2 रोटी हैं और आपने वो उस वक्त खानी है, उसमें से जब आप 1 रोटी किसी गरीब को देते हैं, वो सदका है कि अपना पेट काट कर अपनी ज़रूरियात को महदूद करके दूसरे की ज़रूरियात को पूरी करना, दरअसल ये सदका है। तो मुझे बड़ी खुशी होती है, मैंने सबसे ये कहा है कि हम आपके लिए 24 घंटे खड़े हैं। इंशाअल्लाह जब भी आपको हमारी खिदमत की ज़रूरत पड़ेगी, जानी माली हम हाज़िर हैं, और आप इस वेलफेयर को चलाएं। और बड़ी खुशी होती है कि हमारे लोग अपना कीमती वक्त देकर लोगों की खिदमत करते हैं। असल में वेलफेयर का जो मकसद है, आप बिना तफरीक, ज़ात, पात, मज़हब, रंग और नस्ल के इंसानियत की खिदमत पे जब निकलते हैं, उसे वेलफेयर कहते हैं। जब आप खिदमत करते हैं, ये बहुत बड़ी इबादत है, इसके मुकाबले में दूसरे काम सारे पीछे रह जाते हैं। लेकिन उसके लिए ज़रूरी होता है कि जो आदमी खिदमत के लिए निकलता है, उसके दिल में ये ख्वाहिश होनी चाहिए कि मैं जो कर रहा हूँ, मुझे ये सारी चीज़ें अल्लाह के करीब लेके जा रही हैं। और मुझे एक और शिकवा है फेसबुक के हवाले से। मैंने ज़िंदगी के तकरीबन 14 साल मुल्क से बाहर गुजारे हैं, अमेरिका में। मैं पिछले कई दिनों से ये देख रहा था कि उसमें ज़ात पात के हवाले से बड़ी तौहीन अमेज़ गुफ्तगू लिखी गई है। मैं उन लोगों से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि अगर किसी को किसी से गुस्सा है तो यार माफ़ करते हैं, माफ़ी अल्लाह ताला को पसंद है। किसी के लिए इतना गुस्सा ना रखें। हर इंसान अशरफुल मखलूक है और सारे लोगों को आपस में बराबर समझना चाहिए। मैं जब इतना रंजीदा हुआ तो जिनके लिए वो अल्फाज कहे गए, आप अंदाज़ा कर लें कि वो आदमी को कितना दुख हुआ होगा, उस कम्युनिटी को कितना दुख हुआ होगा। कभी भी किसी को अपने से कमतर ना समझें। खुदा के वास्ते हम सब भाई हैं और हम सब बराबर हैं, और ये चीज़ों को आइंदा ख़त्म कर दें, ये ना करें। बड़ी मेहरबानी आपकी, शुक्रिया। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं माज़रत चाहूँगा कि प्रोग्राम काफ़ी लंबा हो गया है। मैं अपने मेहमान ख़ुसूसी राजा अब्दुल रशीद साहब, बाबू अफसर साहब, औरंगज़ेब अब्बासी साहब, सरदार अरशद साहब और अजमल मीर साहब, जुबैर साहब, शहजाद साहब, औरंगज़ेब अब्बासी साहब, अपने बाग वेलफेयर फाउंडेशन के रहनुमा अपने मज़हर अब्बासी साहब और तमाम साथी, तमाम रियाज खटर साहब और हमारे नज़ीर सरदार नज़ीर साहब हमारे खल्क के सदर हैं, शाहीन वेलफेयर सोसाइटी बाग के तमाम मेम्बरान साहबान का भी, अब्दुल रज़ाक अब्बासी साहब का भी और इसाक भाई का भी,
इनमें अपने तमाम मेहमानों का अपनी तरफ से, अपने कराची कैबिनेट की तरफ से और बनी मेरा की कैबिनेट की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमारी हौसला अफजाई के लिए वक्त निकाला और यहाँ तशरीफ़ लाए। मैं एक दफ़ा फिर आप तमाम दोस्तों का, तमाम भाइयों का, बुजुर्गों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने यहाँ तशरीफ़ लाए और हमारी हौसला अफजाई की। मैं पासबान मेरा वेलफेयर सोसाइटी बांडी मेरा के हमारे साथी अब्बास से जो इस प्रोग्राम के सिलसिले यहाँ आए और ACL 5 के टूर्नामेंट के हवाले से भी यहाँ तशरीफ़ लाए। मैं उनमें राजा आफ्ताब साहब, रियासत अब्बासी साहब, हमारे वहाँ के सदर हैं अशफाक अब्बासी साहब, फ्रांस सेक्रेटरी हैं रियाज अब्बासी साहब और जनरल सेक्रेटरी हैं रमीज़ गुल अब्बासी साहब। मैं इन तमाम साथियों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये वहाँ यानी ख़ुसूसी तौर पर यहाँ पे तशरीफ़ लाए और हमारे इस तंजीम को इस मुकम्मल की और हमारे साथ तमाम। मैं एक बार फिर तमाम साथियों का शुक्रिया अदा करता हूँ। मेहरबानी। शहीन वेलफेयर बाग की तरफ से शहजाद अब्बासी साहब ने 5000 का ऐलान किया है। मैं पासबान मेरा कराची की तरफ से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। बाबू साहब कोई 2 सेकंड में बात करना चाह रहे हैं। बाबू साहब टाइम बहुत शार्ट है, हमें हाल का डबल जुर्माना देना पड़ जाए। असल में मैं भूल गया हूँ, ज़ुबैर साहब ने मुझे पहले बुला लिया था। चाहिए तो ये था कि वो मुझे सबसे आखिर में बुलाते, क्योंकि सदारत उन्होंने मेरे सपोर्ट की थी तो मुझे सबसे आखिर बुलाना था। तो मेरी तमाम फलाई तंजीमों से, जितनी भी तंजीमों से एक नासियाना बात करना चाहता हूँ, कोई आदमी माइंड न करे इसको। और वे ये है कि कोई भी फलाई तंजीम जब किसी सियासी जमात की आला कार बनती है तो वो अपनी अफादियत खो देती है। मेरी तमाम तंजीमों से गुजारिश है कि आप अपने अपने नज़रिए को अपनी जगह कायम रखें। जिसके आप हामी हैं, जिसकी आप हमायत करते हैं, हमायत करें, लेकिन अपने अंदर किसी किस्म की रखना अंदाजी ना होने दें। शुक्रिया। मेरी वाइस चेयरमैन पासबान मेरा कराची नज़ीर अब्बासी साहब से गुजारिश है स्टेज पे आएँ और दुआया कलिमात के साथ आज की तकरीब को इख्तिताम पजीर करें। नज़ीर अब्बासी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपने तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ और तमाम लोग भाई का शुक्रिया अदा करता हूँ और बुज़ुर्गों का ख़ास तौर पे बाबू अफसर जैसे का और तमाम बुज़ुर्गों का शुक्रिया अदा करता हूँ। और अल्लाह करे हमारी ये तंजीम कायम और दान है। शुक्रिया। मेहमान खसूसी को पासबान मेरा कराची की तरफ से एक शील्ड पेश करेंगे। मेरी गुजारिश है स्टेज पे बैठे हुए मेहमान और सदर कराची जलील अब्बासी साहब, सरपरस्त आला बशीर सती साहब, सदर अब्बाद अशफाक अब्बासी साहब उनको शील्ड पेश करेंगे। कारी बिलाल साहब अगर नज़दीक हैं तो मेरे पास आ जाएं। कारी बिलाल। बहुत शुक्रिया सर आपका।
آپ نے ٹائم دیا. میں قاری بلال صاحب سے گزارش ہے دعا کر کے اس کے بعد ریفریشمنٹ کا انتظام ہے, آپ ریفریشمنٹ کی سائڈ چلے جائیں گے. قاری بلال. آمین. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلق محمد وعلی وصحبہ. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم نور قلوبنا بنور الإيمان. اللهم اغفر لنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين. آمين برحمتك. چائے کا انتظام ہے آپ تمام معزز مہمانوں کا, بانڈی میرا باغ پراپر کراچی شہر کے مہمانوں کا, ناظمین, کونسلر, چیئرمین, ہمارے ہزارے کے لوگ جو یہاں پہ بستے ہیں, باغ, کنٹھیالہ, جہان, ان تمام لوگوں کا میں کراچی پاسبان کراچی کی طرف سے شکریہ ادا کرتا ہوں. اور چائے کا انتظام ہے, آپ ریفریشمنٹ کے لیے اس سائڈ پہ چلے جائیں. بہت شکریہ. نہیں آپ بھی چائے آگے لے کے آؤ یار. چائے چائے نہیں ڈالو. نور بھائی مجھے بھی لگے پیچھے کچھ سکھا یار یہ اچھا پتہ ہے اس لیول کے ساتھ اتنے کوئی نہ کوئی ایسا آدمی ہے نا جو نیگیٹو میں اس واسطے میں کوئی میرا الگ کسی کا واسطہ نہیں, میں کبھی ملاقات ہی نہیں, صرف چلے جائیں.